येस. हा प्रशांत जी काय? नमस्कार, वेलकम। आई वेलकम ऑल द ऑडियंसेस। मैं सभी प्रेक्षकों का इस बैठक हैदराबाद के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हमें आनंद हो रहा है कि हम फिर से जुड़ रहे हैं बुजुर्गों के विचार इस श्रृंखला में। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे पुनर्चिंतन इस विषय पर चर्चा और इंटरव्यू पंडित यशवंत महाले जी का हम लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए थे पहले एपिसोड में। इसी का दूसरा भाग लेकर के आज हम वापस आपसे जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस विषय में जो जैसे इंग्लिश में पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, विस्थापन होना, ऐसा एक महान कार्य जो हुआ था हमारे संगीत के क्षेत्र में, जिसको अंजाम दिया था पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने। हमने सोचा कि इसको समझना और इसका पुनर्चिंतन होना बहुत जरूरी है। और हम बहुत शुक्रगुजार है और हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे साथ भातखंडे जी की एक चौथी पीढ़ी के बहुत महान कलाकार पंडित यशवंत महाले जी उपस्थित है। और इनसे चर्चा और इनका इंटरव्यू लेने के लिए ऐसे ही एक विख्यात कलाकार पंडित नयन घोष जी हमारे साथ उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आप सभी का। पंडित नयन घोष जो son of the great tabla wizard Pandit Nikhil Ghosh and nephew of another great artist Pandit Pannanal Ghosh. I welcome you, sir. We had a very brief introduction in the first session. I don't want to take much time here, and let us straight away get into the session. I request Pandit Nayan Ghosh ji to take this session forward and enlighten us with the much awaited session. Thank you. Thank you so much. A big thanks to Prashant Sardeshmukh ji for the introduction and the organization Baitak Hyderabad for presenting this series. And for the sake of the viewers, I want to just say that we just had the first episode, the earlier episode on 1st of November, couple of weeks back. 2nd November. Okay. On 2nd November. Okay. And now this today is the second episode. And the way it is picking up, even just from the first episode, it looks like we are in for very delightful information that will come our way now. And don't be surprised if this goes into a couple of other series also. So for the sake of the viewers, I want to also introduce Mahale ji, Pandit Yashwant Mahale, who is with us, who will be the source of all the information today. He is one of the last important representatives of the Bhatkhande Ratanjankar Parampara. And this parampara is noted for their invaluable contribution, both in terms of music and musicology, both. And in fact, the members of this parampara have very successfully bridged the gap between performers and scholars. There have been eminent persons like Dr. S.N. Ratanjankar himself, the chief disciple of Bhatkhande ji, and his disciples, Pandit S.C.R. Bhatt, Pandit Chidanand Nagarkar, Pandit
K.G. Ginde, Pandit Dinkar Kaikini ji, and several others, including Yashwant Mahale ji. And they have all been trained in both practical performance of music as well as theoretical information theoretical aspect. aspects, so that there is, I mean, the whole idea is to strike a balance, because as we all know, in India there are two absolutely divided streams. On one hand, you have excellent performers, but who need to be more articulate, who need to be more researched and give very authentic, share authentic information. So that's one. The other stream are great scholars over the last few centuries who have written great books, great treatises, but but that whole experience of music, the experience of drowning oneself into music, and that was again required. So I feel this particular parampara has bridged that gap. And today we have Yashwant Mahale ji, who is himself a huge treasure house of information, and I felt very honored that I was asked to interview him and try to bring out as much information as possible for musicians, teachers, students, music seekers of our generation and even the coming generation. This today's interview, I look forward. And friends, let us warmly welcome Pandit Yashwant Mahale ji. Mahale साहब, आपका स्वागत है. नमस्कार जी नमस्कार. नयन साहब, नमस्कार. बहुत बहुत ये क्या आ रहा है बीच बीच में? आई डोंट नो, समथिंग इज. हम हाँ. तो सुन पा रहे हैं. नयन जी नमस्कार. नमस्कार. हाँ अच्छा. नमस्कार. और आज के इस चर्चा सत्र में सभी विद्वज्जन, गुणीजन और रसिक श्रोताओं के दर्शकों को विनम्र अभिवादन. मित्र हो, पहले वाले चर्चा सत्र में हमने संगीतोद्धारक चतुर पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी, मतलब जैसे कि हमारा ये विषय है भातखंडे पुनर्चिंतन, उसी विषय को लेकर, मगर पिछले वाले एपिसोड में हमने पंडित भातखंडे जी के परिवार की जानकारी आपको दी हमने. मतलब वो परिवार, फिर उनके जन्म की महत्ता, उनके जन्म की सांगीतिक विश्व के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमने आपको बताया. फिर उसके बाद हमने उनका स्कूल एजुकेशन, उसके बाद उनका कॉलेज एजुकेशन हमने बताया आपको. और वो हो कि कॉलेज एजुकेशन के वक्त हमने ये भी बताया कि बंबई में उस समय गायन उत्तेजक मंडली नाम के एक इंस्टीट्यूशन जो स्थापन हुआ था, और जो इंस्टीट्यूशन मूलतः पारसी लोगों ने स्थापन किया था. अच्छा. भातखंडे जी का गायन उत्तेजक मंडली के साथ एसोसिएशन, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, मतलब एक अध्याय है. तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं और भी देना चाहता हूं, क्योंकि अगर गायन उत्तेजक मंडली न होती तो भातखंडे जी का जीवन क्या होता. क्यों कि गायन उत्तेजक मंडली ये उनके जीवन में एक कामधेनु के रूप में थी. मतलब उस समय के उच्च कोटि के कलाकारों के गायन सुनना, सीखना, समझना
उन पर चर्चा करना, फिर उन गायनों को सुनते हुए जो जो कुछ सीखा और बुजुर्गों से चर्चा करना, ये सब उनके जीवन की आकांक्षाएं वहां पूर्ण हुई। क्यों कि गायन उत्तेजक मंडली से उनका परिचय या एसोसिएशन करीब करीब 30 से 35 साल तक था। तो गायन उत्तेजक मंडली आप लोग समझते हैं बस एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था जहां पारसी लोगों ने, जो रईस पारसी लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन किया। परंतु भातखंडे जी के जीवन के सांगीतिक जीवन जहां से शुरू हुआ, उसमें उन्होंने जो जो कुछ ग्रंथ लिखे हैं, उनमें शुरू के ग्रंथ, मतलब मैं बाद में कहूंगा भी, सरगम गीत की किताबें, लक्षण गीत, बंदिशों की किताबें, ये सब गायन उत्तेजक मंडली ने प्रकाशित किए थे। और उनका एसोसिएशन वेद गायन उत्तेजक मंडली, ये एक सभासद, एक मेंबर, उसके बाद एक विद्यार्थी, उसके बाद कमिटी के एक्टिव मेंबर, उसके बाद शिक्षक, उसके बाद व्याख्याता, लेक्चर्स, उन्होंने जो जो कुछ कार्य किया उसकी चर्चा करने के लिए, और लास्ट में गुरु, क्योंकि उनके पट्ट शिष्य आचार्य रतनजनकर जी का शिक्षण शुरू हुआ। अच्छा। 1911 में। तो उनके जीवन के इतने भाग है 11 में, जब अन्ना साहब 11 साल के थे। बिकॉज अभी देखिए, भातखंडे जी विष्णु का अवतार जैसे हमने कहा, और अन्ना साहब उनके शिष्य भी श्री कृष्ण विष्णु के अवतार। और एक बात निकली इसलिए कह रहा हूं, अन्ना साहब का भी जन्म 31 दिसंबर 1900, last day of the last month of the last year of the last century, and that also at 12 o'clock midnight. वाह, ये हाँ, तो श्री कृष्ण थे वो भी। Anyhow, तो गायन उत्तेजक मंडली की स्थापना, जैसे मैंने कहा, 1870 में हुई। और जैसे मैंने कहा कि कई खुसरू काबरा जी ने ये स्थापना की, वॉज अ वेरी एक्टिव पर्सन, और उसने उस जमाने के ग्वालियर घराने के परंपरा के उस्ताद हामिद हुसैन करके थे, उनसे उन्होंने 18 हामिद हुसैन करके थे। अच्छा। हाँ हाँ, उनका नाम हामिद हुसैन था। अब इन लोगों के नाम कॉमन होते हैं काफी मुसलमानों के। हाँ, तो उन्होंने गायन उत्तेजक मंडली स्थापन होने के पहले से उनसे तालीम पाई थी। ये गवैये थे और ही वॉज स्टॉन्च। जी हाँ हाँ। कौन? हामिद हुसैन साहब। हामिद हुसैन वोकल सीखा था उन्होंने, ख्याल और ध्रुपद दोनों गा। जो लखनऊ में सितारिये थे वो दूसरे थे ना? वो नहीं, वो हामिद हुसैन अलग थे। वो दुर्भाग्य मैं नहीं देख पाया हूं, मगर उनके बारे में बहुत तारीफ है, आप जानते ही हैं उसके बारे में। एनीहाउ, मुझे ये कहना है कि ये 1870 में जो स्थापन हुआ गायन उत्तेजक मंडली, वो क्यों हुआ? उसकी वजह ऐसी हो गई है कि 1869 में बॉम्बे हाईकोर्ट के एक जज, जस्टिस गिब्स, फॉरेनर, यूरोपियन, उन्होंने कुछ पारसी वेस्टर्न विचारों के पारसियों की मदद लेकर
फिलहार्मोनिक सोसाइटी ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक करके स्थापना करने का अनाउंस किया। अच्छा, फिलहार्मोनिक सोसाइटी ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक, एंड दिस क्रिएटेड अ फीलिंग इन हमारे काबरा जी को कि व्हाई नॉट एस्टैब्लिश म्यूजिक, बिकॉज दे वर स्टॉन्च पेट्रियट्स। और इसलिए उन्होंने सैटरडे 1 अक्टूबर 1870 को he established गायन उत्तेजक मंडली in a small bungalow in the Parsi colony at Charni Road Junction. Charni Road Junction means not the station. ग्रैंड रोड ब्रिज से हम जब मार्केट में जाते हैं, जाने के बाद एक राइट टर्न टू गो टू गिरगांव, जहां फिरोज दस्तूर जी रहते थे। That was known in those days as New Foras Road. Subsequently, Foras Road was shifted much beyond Grant Road. खैर, उन्होंने वो स्थापन वहां हुआ। बाद में गायनोत्तेजक मंडली was shifted to तारदेव रोड। अच्छा, तो ये मुझे क्योंकि वो स्थापन हुआ, और शुरू में ट्रेनिंग क्लासेस इन गायन उत्तेजक मंडली स्टार्टेड इन 1872, जब वो हामिद हुसैन शुरू में थे। अच्छा, और he was there as a member and as a guru till 1880। 1880 में वो गुजर गए। अच्छा, वो गुजर जाने के बाद, अच्छा, उस वक्त गुजर जाने के बाद और उस वक्त पहले भी रावजी बुआ बेलबाकर, जैसे मैंने कहा, जिनसे भातखंडे जी को तालीम मिली है और 300 ध्रुपद मिले हैं जी, और 300 ध्रुपद भातखंडे जी ने केवल लिख के नहीं लिए, तो कंठस्थ कर लिए, सीख लिए। और भातखंडे जी एक करते थे, जो जो कुछ बंदिशें सीखी जाती थी जी, उनको वो उस जमाने के वायर पर रिकॉर्डिंग करते थे। अच्छा, जो वायर की रिकॉर्डिंग उस जमाने में थी, और उस पर रिकॉर्डिंग करते थे और उसकी स्वरलिपि करते थे। तो उन्होंने स्वरलिपि करके, और उनकी एक आदत थी, स्वरलिपि करने के बाद वो स्वरलिपि के अनुसार गा के बताते थे, अप्रूव कर लेते थे, अप्रूव के लिए कि भाई मैं जो गा रहा हूँ आपने सिखाया है, वो मैं नोटेशन के ऊपर गा रहा हूँ, वो बराबर है क्या? हाँ, और वो अप्रूव होते थे। तो ये रावजी बुआ बेलबाकर, ये ध्रुपद ये थे। हाँ, ये बता रहा हूँ नयन भाई, ये हैदराबाद, दक्षिण हैदराबाद के जैनुल्ला खां के शिष्य। अच्छा, अब ये जैनुल्ला खां कौन थे? मतलब ये परंपरा भातखंडी जी कैसी आई है, ये दिखाने के लिए बहुत जरूरी, ये सांगीतिक परंपरा कैसी आई, जरूरी है, बहुत तो जरूरी। जैनुल्ला खां नयन साहब, ये रमजान खां रंगीले के शिष्य। और रमजान खां रंगीले सिकंदराबाद वाले। कौन सा सिकंदराबाद? जो आगरे के पास है वो सिकंदराबाद। मैं बता रहा हूँ हमारे दर्शकों के लिए कि एक इंफॉर्मेशन होगा और ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा। 2 सिकंदराबाद, रमजान खां रंगीले के शिष्य 2 सिकंदराबाद का, एक साउथ का। हाँ, एक आगरे के पास था जी, रंगीले खां, वहीं के थे जी। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो रमजान का रंगीले यहाँ भी आए थे, बोलते सिकंदराबाद वाले कौन से, वो वहां रहे कि यहाँ रहे। मेरे ख्याल से ये जैनुल्ला खां के शिष्य थे, जैनुल्ला खां उनके शिष्य थे, रमजान खां रंगीले के। और रमजान खां रंगीले ये उस मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी आफ्टर 1850, ये जोधपुर के महाराज मानसिंह के दरबार में उस वक्त खंडार बानी के एक उच्चतम ध्रुपद ये थे, इमाम बख्श। इमाम बख्श के शिष्य रमजान खां रंगीले। रमजान खां रंगीले के शिष्य
जैनुद्दीन, और जैनुद्दीन के शिष्य रावजी बुआ बेलबाकर। वाह तो वाह। भातखंडे जी को ऐसी तालीम मिली है। हाँ, अब ये जैसे मैंने कहा कि रमजान का रंगीले कि जब आप आगरे की बातें कर रहे हैं, तो रमजान का रंगीले के भतीजे मोहम्मद अली खां, अच्छा, ये उस वक्त मध्य प्रदेश के कोटा गांव के पास झालावाड़ रियासत थी। हाँ झालावाड़, हाँ झालावाड़ रियासत, जी और जी। उसमें जालिम सिंह के शासन काल में अच्छा ये मोहम्मद अली स्टेट म्यूजिशियन थे। अच्छा। समझ में आई बात? अब ये हमारे मोहम्मद रमजान का रंगीले भतीजे मोहम्मद अली, रमजान का रंगीले के भतीजे, ये जालिम सिंह के दरबार में राज गायक थे। एक प्रश्न है, उनके दो बेटे। एक जी प्रश्न है, ये मोहम्मद अली खां, जी जी। क्योंकि हमारे इतिहास में हाँ, दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम हैं, दो मोहम्मद अली खां थे। एक जी तो जी सैनी वाले जी रबाबिये थे, हाँ, जी जी। बनारस में, लखनऊ में वो रहे, तानसेन के डायरेक्ट ये डिसेंडेंट। और जी ये जी मोहम्मद जी। अली खां आप जो बोल रहे हैं, ये क्या मोहम्मद अली खां कोठी वाले थे? ये मतलब ये आप रंगीले जिन, घराने के, हाँ पर ये, रंगीले घराने का। हाँ पर ये मोहम्मद अली खां कोठी वाले यही के थे? ये कोठी वाले नहीं, अच्छा, ये ये कोठी दूसरे, वाले नहीं। हाँ जी हाँ जी, ये रमजान खां रंगीले के भतीजे। मैं वो कोठी वाले की बात अलग करता हूँ हाँ, बाद में। यानी जो जयपुर के रमजान थे खां वो। रंगीले जिनसे जैनुल, जी 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 जी, वो मोहम्मद मदरंग के शिष्य, हाँ हाँ, मदरंग के शिष्य वो जी जी कोठी वाले। जी तो नैन साहब, ये जी। रमजान का रंगीले के भतीजे, ये उच्च कोटि के गायक, और रमजान का रंगीले उच्च कोटि के गायक और रचनाकार थे। जी, और रमजान का रंगीले की बहुत बंदिशें आगरे घराने में गाई जाती है, वो आगरे फ- के। मैं और पूछना क्यों चाहता आई हूँ, वो भी बता रहा हूं मैं जी। क्यों अ, कि इसलिए फयाज खां का नाम मैं बता रहा हूं आपको। हाँ रमजान का रंगीले जो झालावाड़ के रियासत में राज गायक थे, उनके दो बेटे सफदर अली और फिदा हुसैन, सफदर हुसैन और फिदा हुसैन। सफदर हुसैन की शादी गुलाम अब्बास के बड़ी बेटी अब्बासी बाई से हुई, जिनके लड़के फयाज खां। हाँ, करेक्ट करेक्ट, मैं और पूछने वाला इसलिए था। और इसलिए फयाज खां इस रंगीला घराना। हाँ समझ में आई ठीक, बात? हाँ और हाँ, और गुलाम अब्बास खां की छोटी बेटी कादरी बाई, कादरी उनकी भाई, शादी उनकी शादी कल्लन मथुरा कल्लन खां, वाले, मथुरा वाले, कल्लन खां, मथुरा वाले, क्या हाँ, कहते हैं उनको, सरसपिया, काले खां, काली खां। हम्म, काली खां से हुई। हाँ, तो मगर ये सफदर हुसैन और फिदा हुसैन, तो सफदर हुसैन के लड़के फयाज खां, और मेरे ख्याल से फिदा हुसैन के लड़के निसार हुसैन। अच्छा, ओके ओके, इसलिए उनका रिश्ता था। और फयाज खां के बाद विलायत निसार हुसैन राज गायक थे अच्छा 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 अच्छा, बड़ौदा में। ठीक है ठीक है। तो अच्छा, एनीहाउ, हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जो फिदा हुसैन आप बोल रहे हैं, निसार हुसैन खां साहब हाँ जी रामपुर वाले ना, जी। हाँ उनके हाँ, फादर, तो यानी ये फयाज खां साहब के कजिन भाई थे? ऐसा ही लग, जो इतिहास बता रहा है वो है, बाद में क्या हुआ है मालूम नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। एनीहाउ, तो हमने जैसे बताया कि रावजी बुआ बेलबाकर से भातखंडे जी ने 300 बंदिशें ली। उसी वक्त अली हुसैन और उनके मामू विलायत हुसैन भी वहां थे, उनसे उन्होंने भी 150 बंदिशें ली। मगर जब रावजी बुआ गुजर गए 1895 में, अच्छा, और अली हुसैन और विलायत हुसैन छोड़कर चले गए। ये विलायत हुसैन आगरे वाले नहीं ना? नहीं नहीं जी, नहीं नहीं, ये वो उनके मामू, वो अच्छा, बिनकार जो थे अली हुसैन, उनके मामू। मगर वो ओ, छोड़ के चले गए। उसके बाद
अपने छज्जू खां, नजीर खां और खादिम हुसैन वहां आए हाँ गुरु के नाते जी। और फिर उनसे भातखंडे जी का बहुत ही अच्छे मतलब ये था रिलेशन कि और नजीर खां को तो शास्त्र के इतने ये हो गए भातखंडे जी के विचारों से और रागों के विचारों से कि उन्होंने बाद में छज्जू खां को क्या अमान अली को भी सिखाए। हाँ, अमान अली, अमान अली को छज्जू खां के बेटे अमान अली और जी नजीर जी खां के जी बेटे जी मुबारक अली। यस, उनको भी उन्होंने सिखाया। ठीक। और बाद में भातखंडे जी के ये विचार, रागों के स्वरूप, ये अमान अली को बंदिश बनाने में मदद हुई। ओ वो उन्होंने लिखा है वाह कि वाह। उनको बहुत मदद हुई। तो भातखंडे जी का जीवन उसमें करीब करीब 30-35 साल था गायन उत्तेजक मंडली में। और करीब करीब 1916 या 17 के दरमियान बाद में जब गायन उत्तेजक मंडली की कमिटी पूरी चेंज हो गई, उनके ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो गए, तो शायद भातखंडे जी डिड नॉट एग्री विद दैट और उन्होंने उसके बाद पारसियों की एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी गुड लाइफ लीग करके। अच्छा, गुड लाइफ लीग, हाँ, उनके प्रीमाइसिस में उन्होंने शारदा संगीत विद्यालय स्थापन किया जहां वो अपने सब शिष्यों को तालीम देते थे। अच्छा, वाह समझ में आई बात? जी। तो वहां, हाँ, तो इसलिए उनके जीवन का ये भाग जो है, ये बहुत क्रुशियल एक पोर्शन था, फेज उनके लाइफ। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो उसी वक्त उसके बाद मतलब उसी उनके इस काल में उन्होंने पहला भ्रमण शुरू किया। वो पश्चिम यात्रा भारत की पश्चिम यात्रा में उन्होंने यहाँ बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट वगैरह वगैरह इन सब के यहाँ के गांव, सब वेस्टर्न रीजन के जितने भी ये थे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उन्होंने जब ये देखा नैन भाई कि पुराने ग्रंथों का अभ्यास करने के बाद उनको ये मिला कि उन ग्रंथों में लिखा हुआ संगीत वो बहुत सिस्टमेटिक था, परंतु वो संगीत प्रचलित उनके समय के संगीत से किसी भी प्रकार से मेल नहीं खाता था। और ये स्वाभाविक है कि समय के बदल जाने पर धीरे धीरे बंदिश ये संगीत बदलता गया। म्यूजिक चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूजिक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कल्चर। तो वो जैसे बदल गया तब उन्होंने देखा कि अभी वो संगीत के लिए शास्त्र लिखा गया है जो संगीत नहीं है, और अब संगीत है तो उसका शास्त्र नहीं है। अभी शास्त्र लिखना जो है रागों का। फिर उन्होंने ये, मैं जो कहने की उद्देश्य है, जो 4-5 क्वेश्चन आए हैं ना, उस संदर्भ में भी मैं कहूंगा, मगर वो क्वेश्चन को दोबारा मैं लूंगा। तो उन्होंने जब ये देखा कि भाई अभी नया जो संगीत है वो जो उन्होंने जितने भी उच्च कोटि के गायकों से सुना, फिर जितनी भी बंदिशें उन्होंने इकट्ठी की, वो बंदिशों से उन्होंने अब जो अभ्यास किया, मनन चिंतन किया, अब उसका शास्त्र बनाना जब है तो उसके पहले उन्होंने सब बुजुर्गों से चर्चा की। और उनका अनुभव ये कह रहा है कि जब भ्रमण यात्रा उन्होंने जो शुरू की तो पश्चिम, उत्तर और पूर्व, इससे पहले दक्षिण हो गया था, दक्षिण पहले हो चुका था। नहीं, मैं बता रहा हूं, पहले पश्चिम हुआ 1896 में। अच्छा। दूसरा दक्षिण यात्रा हुआ 1904 में। फिर 1907 में तीसरा हुआ उत्तर का।
अच्छा, और उसके बाद चौथा हुआ पूरब का। ओके, तो मैं आई एम कमिंग टू साउथ, या, मगर उनके ऑब्जर्वेशन में धीरे धीरे बता रहा हूं कि उनके ये यात्रा में उनको ये दिखाई दिया कि जो जो अभ्यास उन्होंने प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथों का किया था, उन ग्रंथों का को समझने वाले एक भी पंडित कोई मिले नहीं उनको। मैं व्यूअर्स के लिए एक संक्षिप्त में कहना चाहूँगा, पहले जो ट्रीटाइजेस ग्रंथ थे उसमें हमारा म्यूजिक बहुत बड़े अच्छे ढंग से कोडिफाइड था, इट वाज कोडिफाइड। सो पंडित भातखंडे जी वांटेड टू री-कोडिफाई म्यूजिक, आवर म्यूजिक एज इट इज टुडे, रागधारी हो, नहीं, मैं बता, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट डू यू मीन बाय कोडिफाई। organize the shastra of the music. That is what I am coming to that, नयन जी। उन्होंने जब ये राग सुने हैं और जिन्होंने जितनी भी तालीम उन्होंने ली है, रावजी बुआ बेलबाकर, अली हुसैन, मोहम्मद अली, उनके विलायत हुसैन, उसके बाद गणपति बुआ भिलवड़ीकर। अच्छा, गणपति बुआ भिलवड़ीकर वो भी गायन उत्तेजक मंडली में आए, वो भी सिखाते थे। गणपति बुआ भिलवड़ीकर वाज द डिसाइपल ऑफ बड़े बालकृष्ण। हाँ, इचलकरंजीकर, बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर, और रावजी बुआ जोशी, ग्वालियर के जोशी। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। Till then I can tell the viewers. नहीं, तो उन्होंने ग्वालियर के गायकी उन्होंने सीखी थी, और उनके पूरे जीवन में जब से वो गायन उत्तेजक मंडली में थे, तब से टिल अबाउट 1820 तक, आई एम सॉरी 1920 तक, उन्होंने भातखंडे जी को 400 बंदिशें दी ग्वालियर की। कौन? गणपति बुआ भिलवड़ीकर। अच्छी बात। वो बंदिशें उन्होंने नोटेशन बना के बाद में एकनाथ पंडित से जो बंदिशें मिली, उससे टैली किया, फिर राजा भैया पूछ वाले से टैली किया कि वो भी ग्वालियर के बंदिशें थी। तो उन्होंने टैली करके कंफर्म किया कि ये बंदिशें ग्वालियर के परंपरा में गाई बजाई जाती थी, इसलिए। वाह वाह। हाँ, तो उन्होंने वो उनसे गणपति बुआ भिलवाड़ीकर से भी लिया। अभी जो आप पूछ रहे थे आशिक अली और क्या कहते हैं, अहमद अली, हाँ, मदरंग घराने के जी, हर रंग घराने। भातखंडे जी के गुरु मोहम्मद अली हर रंग, वो मनरंग घराना, मतलब मनरंग मतलब अब्दुल्ला खां और भूपत खां। अब्दुल्ला खां और भूपत खां मनरंग और महारंग, ये दोनों सदारंग के बेटे। बिल्कुल। उनके घराने के मोहम्मद अली हर रंग भातखंडे जी के गुरु थे। उनके बेटे आशिक अली और अहमद अली, ये दो भाई उस वक्त बंबई में थे, और उसमें ऐसा हुआ नजीर खां, जो भेंडी बाजार वाले जी, और मैं दो लोगों को एक क्षमा कीजिए, लोगों को भेंडी बाजार का क्या है ये रिकॉर्ड मैं करना चाहता हूँ। बिल्कुल। रिकॉर्डिंग हो जाए कि भेंडी बाजार इसलिए कहते हैं कि आज हम जिस एरिया को भेंडी बाजार कहते हैं वो एक मोहम्मद अली रोड का एक एरिया है जो भेंडी बाजार है। हाँ, मगर उस जमाने में द फोर्ट एरिया वाज नोन एज द बाजार, द मार्केट, द मेन मार्केट ऑफ बॉम्बे। और ये जो एरिया था जहाँ ये लोग रहे थे, वो इस एरिया के पीछे का भाग था जिसको बिहाइंड द बाजार कहते थे, उसका अपभ्रंश होके भेंडी बाजार हुआ। बिहाइंड द बाजार का भेंडी बाजार हुआ। मगर याद
नयन भाई एक बात है यहाँ पर, उस जमाने में किसी को भिंडी बाजार घराना नहीं कहते थे, नहीं, और भिंडी बाजार के गवैये, हाँ, भिंडी भिंडी बाजार बाजार वाले, के गवैये, ग्वालियर के गवैये, ग्वालियर के गवैये, हाँ हाँ, आगरे के गवैये, घराना और शब्द समझ में नहीं आई था, बात? करेक्ट, ये लोगों की जो, हाँ, बिल्कुल सही, ये ग्वालियर वाले, जो ग्वालियर वाले, भिंडी बाजार ग्वालियर वाले, वाले, हाँ हाँ, हाँ, आगरे वाले, हाँ, वैसे उसी 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 विचार से जयपुर वाले हमारे निवृत्ति बुआ सरनाइक ने मैं कोल्हापुर घराना है करके बताया। उन्होंने अपने आप को कोल्हापुर, क्योंकि वो कोल्हापुर रहते थे। समझ में आई बात? घराना वर्ड तो बहुत बाद में आया, घराने का अर्थ अलग होता है, अर्थ भी अलग होता है। घराने का अर्थ है घर आना और सीख के जाना। घर आना और घर, नहीं, पुराने लोग, आपने सही कहा, कहते थे ग्वालियर वाले, आगरे वाले, सही बोला, हाँ, हाँ, ऐसे ही बता रहे। पुराने लोग ऐसे ही इनका जो बात, सवाल है उस सवाल का इंट्रोडक्शन में कर रहा हूँ। अच्छा, जी, तो आपको बताना है, ये जो भातखंडी के जीवन में गायन उत्तेजक मंडली के वक्त की बातें कह रहा हूँ जो रिकॉर्ड होना चाहिए। जी, तो नजीर खां थे, और नजीर खां, अच्छा जैसे मैंने बताया है, रिकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं मालूम नहीं, नजीर खां सबसे पहले बड़े छज्जू खां जो ध्रुपद ये थे, दो, उनके बेटे अमान अली, फिर नजीर खां सारंगिए, उनके बेटे का नाम क्या बताया आपने? मुबारक अली, मुबारक अली, तीसरे हाजी विलायत हुसैन जो हाँ, फकीर बन गए, वो आए नहीं बंबई में, और छोटे फिर खादिम हुसैन, वो ख्यालिए। जी जी, तो मुरादाबाद के थे ये सब, जी जी, वो मुरादाबाद के पास बिजनौर गांव के थे। बिजनौर के, बिजनौर के थे, बताओ मैं आप। अच्छा, तो नजीर खां was highly impressed with Bhatkande's research on music and the ragas, and all his जो lectures थे, फिर उन्होंने वो भातखंडे जी के जितने भी शुरू के लक्षण गीत, सरगम, वो उन्होंने सब सीख लिए, और भातखंडे जी के लक्षण गीत उन्होंने नजीर खां की बहुत पट्ट शिष्या अंजनी बाई मालपेकर, हमारे देश की बहुत बड़ी गायिका थी, बहुत बहुत, मगर नयन जी और एक बताना चाहता हूँ, उसके साथ फैजाबाद की अच्छन बाई करके थी बंबई में। अच्छा, अच्छन बाई, जिसका नाम अन्ना साहब ने लिखा है। वाह वाह, अच्छा, और ये दोनों बहुत अच्छा गाती थी, अंजनी बाई और अच्छन बाई, और दोनों को नजीर खां ने अपने भातखंडे जी के सब लक्षण गीत सिखाए हैं। और अंजनी बाई मालपेकर ने अपने इंटरव्यू में कहा है, भातखंडे जी के सब लक्षण गीत मैंने याद किए हैं। एट द एज ऑफ 84 शी सेड, आई रिमेंबर ऑल द लक्षण गीत। ओह क्या बात, उनका इंटरव्यू है, मैं जस्ट लेट इट बी ऑन रिकॉर्ड। उनकी तारीफ मैंने उस्ताद अहमद जान थिरकवा खान साहब से बहुत सुना। मैं आपको अब अंजनी बाई मालपेकर, मैं आपको बताऊं, उनके तारीफ के बारे में अगर आपने विषय निकाला है तो दो शब्द मैं कहता हूं जी। अन्ना साहब कहते थे, हमारे रतनजनकर जी, केसरबाई के फॉर्म में जो केसरबाई थी, बहुत इन हर फॉर्म, उसके 10 गुना अंजनी बाई थी। मैंने भी ऐसे सुना जी। अंजनी बाई के 10 गुना बाबली बाई थी। ओ, आगरे वाले नथन खां की अच्छा, शिष्या, हाँ, चंद्र प्रभा उसका नाम था, हाँ, उसको बाबली बाई कहते थे। और बाबली बाई ने एक महफिल में अपने गुरु नथन का बैठे थे, और खुद का गाना इतना रंगीला हुआ, सामने अलादिया खां बैठे थे, और उसने कहा, अब मेरे बाद मेरे गुरु ही गा पाएंगे। ओ, इतना चैलेंज जब दिया, ये बाबली बाई ने कहा, बाबली बाई ने, जो उसका नाम चंद्रप्रभा था जी। तो जिस वक्त आपने जो अंजनी बाई मालपेकर की बात सुनी है, तो वो मैं कहूँ आपको, एक बार केसरबाई का गाना था, प्लावेट्स की लॉज,
हमारे बबन राव जहाँ लेते थे उसके सामने वाले हॉल में। उस जमाने में उस हॉल में सब लोग, सब बड़े बड़े गवैये वहां होते थे उनके। तो केसर भाई का गाना जब हुआ तो अंजनी बाई मालपेकर का उसका भी गाना कहीं था, वो खत्म होके जा रही थी तो उसको पता चला कि केसर गा रही है तो गई वहां। अच्छा। तो उस वक्त नयन भाई मतलब रिस्पेक्ट कैसा देते थे एक दूसरे को। हाँ। तो केसर भाई ने अंजनी बाई को अपने से बड़ी है वो। हाँ हाँ हाँ, तो काफी वो बड़ी। कहती थी, वो मराठी में उसने कहा, माई तू का आली तिकडे, तुला माझं गाणं ऐकायचं होतं तर मला सांगाय, घरी आले असते तुला। समझ में आई? हाँ, मैं व्यूअर्स के लिए कहूँगा, केसर भाई ने जब गाते वक्त महफिल में देखा कि अंजनी बाई मालपेकर आ गई तो उन्होंने हाँ, कहा कि आप क्यों आई, आप हमें कहते तो हम आपके घर आके सुना देते। आके मैं आपके घर आके आपको सुनाती मैं। वाह वाह। आप क्यों आई? माई कहते थे, मतलब माई। बड़ी बहन। ये उस वक्त जमाने के ऐसा था। और जैसे मैं अभी यही बताता हूँ, वही केसर बाई का गाना एक बार हमारे वाडीलाल जी जो भातखंडे जी के शिष्य थे जी। और नजीर खां के शिष्य थे और जाकिरुद्दीन आलाबंदी खां के शिष्य थे, जिनसे उन्होंने 300 ध्रुपद सीखे थे। अच्छा। वाह अच्छा, वाह। वही। और 300 ध्रुपद में से 150 ध्रुपद उन्होंने हमारी गुरु बहन अहमदाबाद की गीताबेन मेहर को सिखाया। हाँ। गीताबेन मेहर को सिखाया। हाँ, एनीहाउ, तो वो जब केसर बाई एक बार गा रही थी और वाडीलाल जी आए, वहां बैठे थे और केसर बाई कम से कम 20-25 मिनट नीचे ही गा रही है षड्जश पंचम के अंदर। हाँ। तो वाडीलाल जी ने उनको कहा, लेट इट बी ऑन रिकॉर्ड, मैंने कहा, भाई जरा अंतरा तो बढ़ो, देखो क्या गाती हो। उन्होंने इस शब्दों में कहा, भाई जरा अंतरा तो गाओ, देखो क्या गाती हो, बढ़ो तो करा देखो। तो केसर भाई ने क्या कहा मालूम है? उन्होंने केवल हाथ जोड़ा, जी हाँ सुंदर, मैं गाती हूँ। ये रिस्पेक्ट था। क्या बात। अच्छा, तो हमने ये जो कहा, तो गणपति बुआ बिलवाड़ीकर से भी उन्होंने 400 बंदिशें ली। अब ये नजीर खां के पास उस जमाने में विलायत खां, आगरे वालों के बड़े लड़के मोहम्मद अली, बड़े भाई, नहीं, विलायत खां के लड़के, आई एम सॉरी, विलायत खां के ये बड़े भाई, सबसे बड़े भाई, नथन खां के बड़े लड़के, हाँ, मोहम्मद हुसैन खां। मोहम्मद हुसैन, वो बंबई में थे और उनका और नजीर खां का बहुत ही मतलब घनिष्ठ संबंध था, दोस्ताना। वो हाँ। बहुत तो दोस्ताना, बहुत करीब एक दूसरे थे। मगर वहां हमारे वाडीलाल जी भी सीखते थे। अच्छा। नजीर खां से वाडीलाल ने काफी सीखा है नजीर खां से। हाँ हाँ हाँ। तो एक बार मोहम्मद खां, ये विलायत हुसैन के बड़े भाई और वाडीलाल जी घूमने निकले थे। हाँ हाँ हाँ। तो घूमने निकलते समय मोहम्मद खां ने पूछा वाडीलाल जी से कि आपके पंडित जी भातखंडे जी को बंदिशें कलेक्ट इकट्ठा करने का शौक है ना? वो देखो बंदिशों का एक ये जा रहा है, खजाना जा रहा है। कहने कौन है? तो कहने वो आशिक अली है। तो चलिए मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो ये चौपाटी में हुआ, चौपाटी में हुआ और वो उनसे इंट्रोड्यूस करवाया। फिर वाडीलाल जी ने, हमारे भातखंडी जी क्या कर रहे हैं, कहा आप आएंगे क्या? उन्होंने कहा मैं आ जाऊंगी। उस वक्त पैसे नहीं थे गवैयों के पास। और अंजनी बाई ने यही लिखा है कि हमारे गवैये फुटपाथ पे भूखे मरते थे, पैसे नहीं थे। उसके कारण है नयन भाई, दिस इज द इफेक्ट ऑफ 1857 म्यूटिनी इन द नॉर्थ। उस वक्त सब रियासतें कॉन्फिस्केट हुई,
गवई ये सब निकल गए और हाँ। अधिकतर गवैये बंबई में आए, क्योंकि बंबई में वहां उनको गाना बजाना होता था। हाँ। इसलिए फिर वाडीलाल जी उनको भातखंडे जी के पास ले गए। भातखंडे जी ने उनको जो जो कुछ आज तक बंदिशों का संग्रह किया उसको गा के बताए। अच्छा, किनको? आशिक अली को? आशिक अली को। तो आशिक अली वॉज वेरी मच कन्विंस कि भाई ये मेरी बंदिशें सब सिक्योर्ड रहेगी। हाँ। फिर उन्होंने, उनको पैसे की जरूरत थी, उन्होंने कहा क्या पैसे की जरूरत है आपको, मैं देता हूं। अच्छा। और भातखंडे जी बाय हिज एडवोकेट प्रोफेशन हाँ। he has earned enough for himself because he was alone. हाँ। 1900 में उनकी पत्नी की गुजर गई थी, हाँ, और बेटी थी। 1903 हाँ। में उनकी एक बेटी थी, वो भी गुजर गई थी। हाँ। सो ही वाज अलोन। हाँ, तो पैसे उनको कोई ये नहीं थी, तो उन्होंने कहा मैं दे दूंगा। और जो आशिक अली उनके पास जाते थे उनको बंदिशें देते थे। अच्छा। मगर ये न्यूज मोहम्मद अली के पास गई। आशिक अली के फादर, पिताजी। हाँ जी, हाँ, उनके पास जब गए कि अरे बंबई में भातखंडे लूट रहे हैं आशिक अली को, ओहो। आप चले आइए। तो वो मोहम्मद अली आए तो उनको भातखंडे जी के पास गए, तो भातखंडे जी ने मैं व्यूअर्स को बताऊं, मोहम्मद अली यानी हर रंग, ये सदारंग घराने के डायरेक्ट डिसेंडेंट। जी जी जी, सदारंग घराने के, मनरंग डायरेक्ट। घराने के, मनरंग घराने के सदारंग, फर्दर मनरंग, और मनरंग घराने के हर रंग। जी जी। मनरंग ये लोग घराने बम्बई के में थे। देखिए, मुंबई बम्बई में वालों को मालूम होना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग थे यहाँ। थे यहाँ पे। अब तो ये इतिहास एक रिकॉर्ड हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, माफ जी कीजिए। जी। तो उसके बाद जब मोहम्मद अली ने भातखंडे जी के पास गए और उन्होंने आशिक अली ने दी हुई बंदिशों सुनाई, तो वो इतना गर्म हो गए, इतना गर्म हुए कि वो अपने बच्चे को कहने लगे, बदतमीज, तुमने मेरी जायदाद लुटा ली, इससे तो मैं मर जाता तो अच्छा रहता। ओह। मगर भातखंडे जी उनके चरण पकड़े और रोने लगे कि खां साहब, मैं कसम लेके कहता हूं, मैं इस बंदिशों को फेंकने नहीं दूंगा, मैं मुझे अपने लिए माफ नहीं कीजिए, कर रहा हूँ। मैं उसको ये नहीं करूंगा, और मैं आपका शिष्य बनता हूं, चाहे आप मुझे दे या न, मैं आपका शिष्य बनता हूं, यही गंडा बनता हूं, ये गंडा लीजिए। बंधवा लिया, गंडा बंधवा लिया। बंधवा लिया। और देन ही वाज फुल्ली कन्विंस। और उसके बाद उनका जो सहवास उनके लिए लिया, लाइक फादर एंड सन। क्या बात। और मोहम्मद अली फिर भातखंडे जी ने हर एक बंदिश में, लक्षण गीत में जहां जहां कुछ लिखा है, बाद में नीचे क्या लिखा है, हर रंग सुमत। मतलब ये लक्षण गीत में जो रागों के बारे में मैं लिखा हूं, उससे हर रंग सहमत है। अच्छा, सुमत। वाह वाह वाह। हर रंग सुमत मीन्स हर रंग सहमत। हाँ, मतलब अप्रूव्ड। लक्षण गीत अप्रूव्ड। और उस वक्त भी उन्होंने जो कुछ मोहम्मद अली से, जो जितनी आशिक अली के यहाँ से और उनके भाई से जो बंदिशें मिली, जी। वो उन्होंने मोहम्मद अली से कंफर्म करवा ली कि देखिए आपकी आपकी मिली हुई बंदिशें मैं गाता हूँ, इज इट ओके? तो उन्होंने वो अप्रूव किया। और वो वाह। सब बंदिशें मनरंग की, मनरंग घराने की, उन्होंने क्रमिक पुस्तक मालिका में भी है। ओह। उसके वाह। बाद, उसके बाद उन्होंने एकनाथ पंडित, माओ पंडित जिसको कहते हैं हम, हाँ, शंकर पंडित के छोटे भाई, कृष्णराव जी के चाचा। यस, शंकर पंडित के छोटे भाई जी। कृष्ण, उनसे उन्होंने भी कम से कम 350 बंदिशें ली। अच्छा। हाँ, अब एकनाथ बताइए पंडित। मुझे क्या क्या उन्होंने कितने बंदिशें ली उनके समझ। और उन्होंने ये, जैसा मैंने अभी कहा था कि जी। जब पुराना शास्त्र है मगर उसका प्रैक्टिकल नहीं है, हम्म। और अभी का प्रैक्टिकल है मगर उसका शास्त्र नहीं है, तो शास्त्र बनाने के लिए किससे बनेगा? तो बंदिशों के आधार पर शास्त्र बनेगा। हाँ। तो जैसा हम कहते हैं हमेशा, शास्त्र इज अ बैकबोन टू द प्रैक्टिकल, क्या बात। और बंदिशें इज द बैकबोन टू द शास्त्र। बहुत अच्छी बात। वाह।
बंदिशें निर्माण करने के लिए, शास्त्र निर्माण करने के लिए बंदिशें हैं, बंदिशें हैं। और शास्त्र जो है वो राग का बैकबोन है। हाँ बिल्कुल। ये भातखंडे जी के विचार से है। फिर उन्होंने वो बंदिशों के शास्त्र जब निर्माण किया तो उनके जीवन 3 भाग में है नयन भाई। भातखंडे जी 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज स्टडीइंग द ऑल एंशिएंट मेडिवल treatise confirming it कि all the music and whatever it is written there is not relative to the music which was there during his time. He had arrived at that conclusion. That is one part. एक पार्ट हो गया जीवन का। दूसरा पार्ट नया शास्त्र की रचना की, नई शास्त्र की रचना की बंदिशों के आधार पर, बुजुर्गों की चर्चा के माध्यम से वो जो विचार लिए और उन्होंने वो भी लिखे हैं। ऐसे ऐसे ये उनके विचार ये है, ऐसा भी गाया जाता है, ये भी गाया जाता है। तो उसके आधार पर नया शास्त्र निर्माण किया, बंदिशों का संग्रह किया। फिर द थर्ड पार्ट ऑफ हिज लाइफ इज, अब ये शास्त्र और ये बंदिशें आगे की पीढ़ी के लिए जाने के लिए विद्यालयों की स्थापना। क्या बात। तो 3 भाग में उनका जीवन जो है। फर्स्ट इज स्टडीइंग द ओल्ड ट्रीटाइज, अराइविंग एट द कंक्लूजन दैट द ओल्ड म्यूजिक इज नॉट प्रिवेलेंट नाउ, सो इट नीड्स अ शास्त्र। उसके लिए शास्त्र निर्माण किया, वो शास्त्र और बंदिश, रीस्ट्रक्चर्ड द होल शास्त्र एंड द बंदिशेस। अब उसको आगे जाने के लिए, परंपरा के लिए विद्यालयों की स्थापना, वो ग्वालियर, बड़ौदा, ग्वालियर, लखनऊ और अन्य भी भातखंडे विद्यापीठ, छोटे छोटे विद्यालय स्थापन हुए। उनके जब जब कॉलेज में से जो शिक्षा पाए थे भातखंडे कॉलेज से, ग्वालियर से, लखनऊ से, बड़ौदा से, उन्होंने अपने भातखंडे विद्यालय करके अलग अलग स्थापना। सो इसका मतलब उनका थर्ड पार्ट ऑफ हिज लाइफ वाज दिस कि दैट इट शुड गो फर्दर, प्रोपगेशन हो गया। तो ये उनका एक भाग हुआ। अभी उनके यात्रा में जैसे मैंने कहा जी कि पश्चिम के यात्रा में उनको कुछ मिला नहीं, पश्चिम के यात्रा में उनको कुछ मिला नहीं, ठीक है, ओके। उत्तर की यात्रा में उनको कुछ मिला नहीं। नहीं, कोई भी पंडित या संगीतज्ञ उनको नहीं मिले कि जिन्होंने प्राचीन ग्रंथों का अभ्यास किया है या कुछ किया है। दैट एंगल में वही कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि भाई मुझे मालूम नहीं है, मैंने तो अभ्यास किया है, लेट मी चेक वेदर एनीबडी हैज लर्नड और एनीबडी हैज अराइव्ड एट एनी कंक्लूजन। कि हो सकता है किसी ने और पढ़ा होगा, मेरे ध्यान में नहीं आया होगा। इसलिए उन्होंने जहां चर्चा करनी थी सब संगीतज्ञों से चर्चा की, विद्वत जनों से चर्चा की जी। उनको कोई मिला नहीं, केवल मिला वो दक्षिण में भी थोड़ा मिला। अब दक्षिण में उनको भी ज्यादा नहीं मिला, मगर इटैयापुरम में जब वो गए, अच्छा, तो वो क्या कहते हैं उसको, सुब्बरामा दीक्षितार से मिले। सुब्रम दीक्षित, हाँ दीक्षितार। अब हाँ। ये सुब्रम दीक्षित कौन थे? ये मुथुस्वामी दीक्षितार के घर परंपरा के थे, दीक्षित के परंपरा में थे जी, और दीक्षित के परंपरा के थे। और मैं दूसरी बात बताऊं, क्या कहते हैं, वेंकटमुखी के पिता का नाम गोविंद दीक्षित। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो तो बहुत पहले थे, वो तो बहुत मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये सुब्रम दीक्षित ने
क्या बात कही भातखंडे जी से कि जिससे उनको थाट पद्धति के विचार मिले और थाट पद्धति निर्माण की भातखंडे जी ने। हाँ, वो क्या मिले कि उन्होंने कहा कि जिसको हम कहते हैं संगीत रत्नाकर। हाँ, 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 संगीत रत्नाकर, हाँ, हाँ, बता रहा हूं मैं आपको, शारंग देव जी का लिखा हुआ। शारंग देव का संगीत रत्नाकर में 18 जातियां लिखी है। अच्छा, 18 हाँ, जातियां लिखी है। ठीक है। और वो 18 जाति, एंड शारंग देव का टाइम संगीत रत्नाकर का 1210 to 1247, राइट। 13th सेंचुरी। हाँ, हाँ, जबकि वेंकटमुखी का चतुर्दंडी प्रकाशिका हाँ, इज 17th सेंचुरी, 1640। हाँ, 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 तो उन्होंने कहा कि शारंग देव के संगीत रत्ना के 18 जाति हाँ, और वेंकटमुखी के 72 थाट हाँ, का रिलेशन है, मेल का का, रिलेशन है, मेल है। वो इसलिए है 18 चौक 72। हाँ, 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 क्या बात। 18 चौक 72, समझ में आया? जी, जी, जी। हाँ, इसलिए। और फिर भातखंडे जी ने कहा, समझ गए कि वो क्या है। हाँ, वाह, अभी उनको, अब मैं आपको बताता हूं उस वक्त वो जो ये थाट पद्धति शुरू कैसे विचार से हुई, हाँ, उसका मैं एक थोड़ा सा यहाँ देना चाहता हूँ। 1 मिनट, इफ यू डोंट माइंड। नहीं, जरूर कहिए, कहिए, ये इम्पोर्टेंट है। जहां तक मेरी मालूमात है, मैं तब तक आप हाँ, पानी पी लीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, बोलिए। उसमें से 10 उन्होंने ऐसे मेल थाट के मैं लिए। आ रहा हूँ, मैं जी, आ रहा हूँ उस पर। मैं जरूर आता हूँ, मैं आऊंगा। मगर अब देखिए, विद्वानों के मतानुसार, या कि ये रिकॉर्डिंग हो जाए, जी, जी, विद्वानों के मतानुसार रागों का जन्य जनक वर्गीकरण अथवा थाट और उनसे निर्मित राग वाली प्रणाली ईस्वी सन की 15वीं 16वीं सदी के श्री विद्यारण्य स्वामी ने प्रचलित किया। अच्छा, श्री विद्यारण्य स्वामी ने प्रचलित किया। अच्छा, मैं बाद में आता हूं। स्वामी जी का पूर्वाश्रम का नाम माधवाचार्य था। अच्छा, उनका कार्यकाल संगीत रत्नाकर के टीकाकार कल्लीनाथ 1420 के बाद और दाक्षिणात्य संगीत के सर्वप्रथम उपलब्ध ग्रंथ स्वरमेल कलानिधि के रचयिता तथा विजयनगर के एक मंत्री रामामात्य, अच्छा, अच्छा, 1550 के पूर्व इस काल में हुआ। आश्रम के स्वामी विद्यारण्य उर्फ माधवाचार्य ये विजयनगर राजा के दीवान थे। अच्छा, हाँ, हाँ, आगे संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने विद्यारण्य नाम धारण किया और उन्होंने संगीत सार नाम का ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में जन्य जनक मेल राग प्रणाली की व्याख्या की गई है। व्याख्या की गई है, किंतु दुर्भाग्यवश ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अच्छा, इस स्वामी जी के उल्लेख तंजावुर के राजा रघुनाथ नायक ने उनके आश्रित रहने वाले पंडित वेंकटमुखी श्री गोविंद दीक्षित के द्वारा लिखित संगीत सुधा नामक ग्रंथ की अंग्रेजी में लिखी हुई प्रस्तावना में मिलता है। अच्छा, अंग्रेजी में लिखा।
हाँ, यह ग्रंथ मद्रास म्यूजिक एकेडमी के प्रकाशित हुआ है। अच्छा। कल्लीनाथ के समय तक संभवतः प्राचीन ग्राम मूर्छना जाति राग यही प्रणाली प्रचलित रही होगी, ये अवमान है। उसके बाद मेल थाट तजन्य राग वाली प्रणाली कुछ ही वर्षों में प्रचलित हुई। अच्छा। यो अनुमान करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके पूर्व पंडित शारंगदेव ने मूर्छना के द्वारा सिद्ध होने वाले सभी शुद्ध विकृत स्वर एक ही सप्तक में लाकर मेल राग पद्धति के लिए मार्ग खुला कर दिया। थैंक यू। अच्छा अच्छा अच्छा। So in other words, this effort of organizing thought system started from conceived from Sangeet Ratnakar. संगीत रत्नाकर। So that means from the 13th. संगीत रत्नाकर इसलिए 72 में उसमें जो जाति गायन था 18 जातियां जो बताई है जी, 18 जाति के 18 चौक 72, इन्होंने 72 मेल किए। इन्होंने चतुर्दंडी प्रकाशिमाय वेंकटमुखी ने। नहीं, हम आज के दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हम लोग इतना आसानी से समझते हैं आजकल, थाट ये राग है, ये थाट का फलाना राग है, ये पूरा कॉन्सेप्ट जन्म लिया 13th सेंचुरी में। एग्जैक्टली 13th सेंचुरी में, क्योंकि रत्नाकर का समय 1210 से 1247, शारंगदेव का संगीत रत्नाकर उस समय में लिखा गया है। जी जी जी। इसको जो अभी देखिए, इसको भातखंडे जी ने कनेक्ट कैसे किया, देखिए। अब मैं बता रहा हूं आपको। अब उन्होंने जैसे वेंकटमुखी ने 72 मेल बनाए। अब 72 मेल इसलिए बनाए क्योंकि हमारे भारत हिंदुस्तानी संगीत के 12 स्वर हैं। 12 स्वर उनके भी हैं, मगर उसके 16 नाम हैं। उनके 16 नाम है। समझ में आई बात? तो उनमें क्या है, कर्नाटक संगीत में शुद्ध ऋषभ को, जिसको वो लोग कोमल गंधार भी कहते हैं या चतुश्रुति ऋषभ भी कहते हैं, मतलब दो बातें हुई, दो नाम हुए, दो नाम हो गए। उसी प्रकार शुद्ध दैवत को वो निषाद भी कहते हैं या चतुश्रुति दैवत भी कहते हैं जी। तो 16 मतलब तो 16 हो गए, 12 और 4 16। मगर उनके थाटों में, कर्नाटक वेंकटमुखी के थाटों में एक ही स्वर के 2 रूप आते, 2 अलग नाम से। वो इस फॉलो माय पॉइंट, वो एक ही स्वर के 2 स्वर आए, एक ही स्वर के 2 रूप वहां कोमल और शुद्ध आएंगे, ठीक है, 2 अलग नाम से। समझ में आई? वो गंधार होगा या वो चतुश्रुति ऋषभ होगा, वो शुद्ध। दिस इज नॉट परमिसेबल फॉर आवर हिंदुस्तानी संगीत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए भातखंडे जी ने इस 72 मेलों में से उनके जो थाट है, जिनमें एक एक स्वर के 2 रूप वहां है, वैसे 40 मेल है। सुनिए, वैसे 40 मेल है आउट ऑफ 72। तो वो हमारे काम के नहीं है, ठीक है। बचे 32, 32 मेल्स, ठीक है। वो भातखंडे जी ने 32 मेल्स अपने संगीत के लिए ले लिए। और उनमें से आउट ऑफ 32 मेल्स उन्होंने उनके वक्त जितने भी राग उनको मिले, जो क्रमिक पुस्तक 1 से 6 तक हैं, उन मेलों का उन्होंने नहीं वर्गीकरण किया। वो राग सब उस 10 थाटों में वर्गीकरण योग्य थे। उन्होंने उन रागों को 10 मेलों के अंदर वर्गीकरण किया, बिकॉज दे कुड बी क्लासिफाइड ओनली विद इन द 10 थाटास। करेक्ट। और
और उन्होंने फिर कहा कि ये 10 थाट के अंतर्गत मैंने वर्गीकरण, जो कुछ राग मुझे मिले हैं उनका वर्गीकरण मैंने 10 थाटों में किया है। बाकी बच्चे हैं 22 थाट हैं, उसको हम अलग रखेंगे। बाद में जैसे जैसे नए राग निर्माण होंगे उन थाटों में से कर किए जाएंगे। ये बात मतलब he was so broad minded and so such a vast vision उनको था कि, और ये बिल्कुल बोलिए नहीं मैं कहता हूँ कभी कभी हमारे म्यूजिशियन भाई कहते हैं कि 10 थाट के बहुत सारे राग तो हाँ नहीं 10 थाट के बाहर भी है, इसीलिए उन्होंने वो स्कोप रखा था, स्कोप एग्जैक्टली। और आपने देखा होगा नयन भाई, हमारे गुरुजी अन्ना साहब के कितने भी राग हैं ऐसे नए बनाए हुए, वो ये 10 थाट के बाहर के थाटों में है। बाहर बकुलाभरण ये है, वो है, चारुकेशी है, ये वगैरह जितने भी थाट है वो उसमें है। मैं उनके नाम भी बताता हूँ आपको, वो नाम भी है मेरे पास। जी। नहीं, आज के भी कई राग बाहर 10 थाटों के बाहर आ जाएगा। मगर उन्होंने उनका विजन यही था कि आउट ऑफ 72 थाट्स 40 थाट्स आर नॉट यूजफुल फॉर हिंदुस्तानी संगीत, ओनली 32 थाट्स आर यूजफुल फॉर हिंदुस्तानी संगीत। वो उन्होंने अपनाए और उनमें से जो राग उनको उस वक्त मिले और जिनको उन्होंने वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया, that could be classified only within the 10 thoughts, and that's why yes sir. And also only one variety of each note, ऋषभ का एक, गंधार का एक, मध्यम का एक, ऐसे उन्होंने यही कहा, सिंप्लीफाई कर दिया। कर्नाटक, इसने कर्नाटक संगीत में एक ही स्वर के दो रूप, दो नाम से आते हैं और एक थाट में आएंगे, वो हमारे यहाँ नहीं चलेंगे। इसलिए उन्होंने फिर क्या किया, जितने थाट में केवल हमारे 7 स्वर आते हैं, 7 या 12 स्वर आते हैं हमारे थाट में 7 स्वर आएंगे, वही थाट हम स्वीकार करेंगे। तो यानी he simplified it, he made it easy for it. अगर आज हम कर्नाटक संगीत पद्धति के अनुसार लोग कुछ कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे राग हुए जिनमें 2 मध्यम है, 2 गंधार है, उसको क्या किया जाए? अरे तो ऐसा करने जाएंगे तो और it would be more difficult for the students also to understand, more complicated. समझ में आई बात? जी। तो उन्होंने ये मैं बताऊंगा, और ये 32 थाट्स अन्ना साहब ने अपने किताब में संगीत परिभाषा विवेचन में दिए हैं जी। समझ में आई बात? तो आज यहाँ और जितने भी राग, अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए कुछ जो राग हुए हैं उनमें कौन से थाटों में राग नए राग हुए हैं, मैं बता रहा हूं आपको। कुछ राग जो बने जिनमें ये 10 थाटों के अलावा जी, धेनु का नहीं, पर इसके स्वर क्या हैं ये मालूम करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको दर्शकों के लिए, उसके दर्शकों के लिए रे ग ध कोमल, रे ग ध कोमल और निषाद शुद्ध। ठीक है, सुनिए अब सुनिए, हनुमत तोड़ी मीन्स भैरवी। सुनिए, हनुमत तोड़ी मीन्स भैरवी, उनका हनुमत तोड़ी है, उसको हम भैरवी कहते हैं। जी हाँ, करेक्ट है। उसमें रेगा धनी कोमल है, ठीक है, और धेनुका में रेगा ध कोमल है, निषाद शुद्ध है। ओ अच्छा, सारे तो अगर कोई ऐसा अभी देखिए, हमारा भैरव है माया मालव गौड़, जिसमें रेधा कोमल है, ठीक है, निषाद शुद्ध है। मगर बकुलाभरण में रेधा नी कोमल है, रेधा नी, अच्छा, कोमल है। यानी रेधा नी यानी बसंत मुखारी आ गया।
आ गया है उसमें, है ना? आगे देखिए, अभी चक्रवाक, हाँ, चक्रवाक में रे और नी कोमल है, अच्छा, रे और नी कोमल है, हो गया, अरे और नी कोमल, कोमल है, तो ये अहिर भैरव हो गया क्या? एग्जैक्टली। हाँ, ठीक है। फिर सूर्यकांत, इस पे केवल रे कोमल है ओ, और निषाद शुद्ध है। अच्छा, वहां पहले नी कोमल रहता है, फिर शुद्ध रहता है, कोमल रहता है, शुद्ध रहता है, ऐसे दो अलग ठाट हो गए। तो ये आनंद भैरव हो गया। एग्जैक्टली। फिर नट भैरवी हमारा आसावरी है, हाँ, नट ठीक है। भैरवी हमारा आसावरी है, गधनी कोमल है। हाँ, ठीक है। उसके बाद का किरवाणी, जिसमें ग और नी को, ग और ध कोमल है, हाँ, हाँ, नी शुद्ध है हाँ, बराबर है ना? हाँ, ये कौन सा दर्शकों, थाट में पड़ जाएगा? बराबर है। किरवाणी, हाँ, किरवाणी है। किरवाणी, हाँ, 10 थाटों के बाहर चला गया ना। इसलिए मैं कह रहा हूं ना। हाँ, फिर खरा हर प्रिया हमारा काफी है, काफी है। ग और नी कोमल है। हाँ, फिर गौरी मनोहरी में केवल ग कोमल है, निषाद शुद्ध है। अच्छा, ग खाली कोमल है, तो ये तो अपना पटदीप हो गया, है ना? बिल्कुल तो लोगों को मतलब स्वरों के अनुसार थाटांतर्गत वर्गीकरण करना हो, हाँ, तो इतने थाट हमारे पास हैं। ओहो, पता अभी है, भी स्कोप अब है, देखिए, स्कोप है। मैं पूरे बता देता हूं आपको, 32 थाट ऐसे हैं। वाह, अभी चारुकेशी है हमारा, हाँ, चारुकेशी में ध और नी कोमल है, ठीक है। हाँ, हो गया। हाँ, फिर सरसांगी है, उसमें केवल ध कोमल है, निषाद शुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है, सरसांगी हाँ, हाँ, मेल। अच्छा, हाँ। फिर हरि काम्बोज है हमारा, खमाज है, निषाद कोमल है। नहीं, इसके पहले वाला सरसांगी बोलिए। सरसांगी मेल में केवल दैवत कोमल है। तो ये नट भैरव हो गया, है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, हरि काम्बोज हमारा खमाज है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, फिर हमारा धीर शंकराभरणम सब शुद्ध है, हाँ, बिलावल है। हाँ, बिलावल है। हाँ, हाँ, फिर शुभ पंतु वराली है हमारा, तोड़ी है। हाँ, ठीक है। हाँ, शुभ पंतु वराली हमारा तोड़ी है। वो भवप्रिय जो है, वो तोड़ी में कोमल निषाद है। अच्छा, तोड़ी में कोमल के साथ। हाँ? फिर हमारा षडविध मार्गिणी है, जिसमें रेगा नी कोमल है। एक मिनट, ये पंतुवराली का आपने सिर्फ तोड़ी है, लेकिन निषाद कोमल है। कोमल निषाद है, तो ये एक रेगा पुराना, धनी, हाँ, तो एक रेगा पुराना राग। धनी। मगर अगर रेगा धनी कोमल में मध्यम शुद्ध हो जाए तो भैरवी होगा, हाँ, तो मध्यम तीव्र है, तीव्र है। तो ये अदारंगी तोड़ी हो गया, है ना? नयन भाई क्या बताए लोगों को, सब सब हमारे राग आजकल जितने नए बनेंगे, वो ये क्योंकि 32। रे, गा कोमल, मध्यम तीव्र, दैवत कोमल, निषाद निषाद कोमल, कोमल, तो फिर कोमल। अदारंगी तोड़ी हो जाता है। बिल्कुल है जी, तो। और शुभ पंतु वराली हमारी तोड़ी है। जी, फिर षडविध मार्गिणी हमारा है, रेग नी कोमल और मध्यम तीव्र। अच्छा, अब सब अच्छा, मध्यम तीव्र आएंगे, पहले शुद्ध आ गए। हाँ, 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 16 राग पहले में सब मध्यम शुद्ध आए, अब सब में तीव्र आएंगे। मैं बता रहा ओ, हूं उसमें, अरे बहुत सारे हैं, अरे बाप रे मैं बाप। बता रहा हूं आपको। षडविध मार्गिणी, ये रेग धनी कोमल है, मध्यम तीव्र है, हम्म, जिसको हम खट मार्ग कहते हैं। अच्छा, उसको हम, हमारे यहाँ नाम दिया गया है खट मार्ग। फिर राग है सुवर्णांगी, जिसमें रेग कोमल है, मध्यम तीव्र है। हाँ, 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 सारे अच्छा,
रेगा कोमल है, मध्यम तीव्र है। हाँ, बड़ा मतलब कितना स्कोप भातखंडे जी ने रखा है, मुझे बताइए आप। सच्ची बात। आने वाले समय में और भी राग ऐसे बनेंगे, उसके लिए उन्होंने ये सब काफी तो आर्ट बना के रखे। 32 थाटों में से उन्होंने कहा अभी ऐसे भी राग बने जो वो 10 थाट के अंदर भी आ जाएंगे नए, वो भी तो होंगे, मगर उसके अलावा 10 थाट के अलावा भी जितने भी राग आएंगे वो ये 22 में होंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत तो बड़ा इतना प्रोविजन उन्होंने करके रखा है। कितना उनका सोच कितना चौड़ा था। वाह वाह वाह। देखिए आज के लोगों को यह मालूम होना चाहिए, मगर ये हमारे गाने बजाने वाले नहीं, कम से कम जैसा आप कह रहे हैं, कम से कम संगीत सीखने वालों को तो मालूम होना चाहिए। बिल्कुल, सीखने वाले, सिखाने वाले और जो प्रैक्टिशनर्स हैं, इसलिए जरूरत है, बिकॉज नहीं तो एक रंगा हो जाता है बात। आर्टिस्ट शुड ऑलवेज बी चौमुखा। एग्जैक्टली, यू हैव टू बी चौमुखा। हाँ, नहीं तो एक रंगा हो जाता है। हाँ, अभी हम जो प्रश्न आए हैं उनको देखेंगे। जरूर जरूर। अभी अभी 1.25 घंटा हो गया है, तो अभी हाँ आप कोई बात नहीं, पिछले बार मुझे कुछ नहीं, मैं दर्शकों को कहना चाह रहा हूँ कि पिछले बार कुछ प्रश्न आए थे, वो उसके जवाब अभी होगा, हम उसका अभी होगा। और ये सब्जेक्ट जो है भातखंडे जी के विचार और उनका जो कंट्रीब्यूशन योगदान है, ये चलता जाएगा मेरे ख्याल से, और 1-2 एपिसोड तो लग ही जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों को, न्यूअर जनरेशन को और ख़ास करके प्रैक्टिशनर्स ऑफ म्यूज़िक को बहुत सारी चीज़ें भातखंडे जी के बारे में नहीं मालूम है, या तो एक कुछ कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमियां हैं। हाँ, गलतफहमियां हैं। तो ये सब सारी चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये 2 ही एपिसोड के अंदर इतना देख रहा हूँ कि भातखंडे जी ने जो काम किया वो रियली सुपर ह्यूमन काम किया है। एक जिंदगी में एक व्यक्ति ने इतना बड़ा काम किया, इट इज अनइमेजिनेबल। कहिए। और तो अभी नयन जी, उनका पहला सवाल था, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एडॉप्टेड बाय भातखंडे जी। अभी भातखंडे जी ने स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में कहीं कहा नहीं है। सुनिए, मैं केवल उनके विचार, उनके थॉट प्रोसेस कह रहा हूं। उन्होंने आज जो स्टैंडर्डाइजेशन लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं, और इसके बारे में कुछ सब क्या कहते हैं, सेमिनार हुए हैं स्टैंडर्डाइजेशन, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ व्हाट। इस प्रश्न में, इन्होंने प्रश्न में ये जो सवाल है, व्हाट कॉन्सेप्ट भातखंडे जी हैज अडॉप्टेड इन स्टैंडर्डाइजेशन। अभी इस सवाल का जवाब, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्वरा, स्टाइल, राग स्वरूप या प्रेजेंटेशन, किसका स्टैंडर्डाइजेशन किस चीज का। तो मैं खाली प्रिज्यूम यही करता हूं कि अगर ये कोई सवाल स्टैंडर्डाइजेशन मतलब राग स्वरूपों के बारे में कहते होंगे, presuming that it is the person who has put the question applies to only raga swarup. Yeah, correct. तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे हिंदुस्तानी संगीत के राग स्वरूप जितने भी, देखिए जो प्रचलित राग हैं, 45 राग, जैसे यमन, भूप, शुद्ध कल्याण, कामोद, छायानट, केदार, हमीर, कामोद, छायानट, बागेश्वरी, सारंग, बिम्पलास, मुल्तानी, पुरियादनाश्री, पूर्वी, मारवा, तोड़ी वगैरह वगैरह, ये जो जितने प्रचलित राग हैं जो
पहले वाले घराने में पहले वाले लोग केवल प्रचलित राग ही ज्यादा गाते थे, फॉर योर इंफॉर्मेशन, एंड यू ऑल्सो नो इट। वो कहते थे अरे अप्रचलित राग ये दिखाने के दांत है, चबाने के दांत नहीं है। क्या बात। चबाने के दांत मतलब उनको उन रागों को इत्मीनान से गाना घंटे 2 घंटे के लिए वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो दिखाने के दांत है, चबाने के दांत नहीं है। सही बात, सही बात। तो जो 40-45 राग जो प्रचार वाले थे, प्रचलित राग थे, उन्होंने भातखंडे जी ने देखा, भातखंडे जी ने देखा, मैं बता रहा हूं जानबूझ के, ये शास्त्र उन्होंने क्यों बनाया? वो इसलिए कि जब उन्होंने देखे कि ये राग अलग अलग कलाकार अलग अलग शैली में गा रहे हैं मगर राग स्वरूप एक ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एक 40-45 राग जो प्रस्थापित राग हैं। उनको जब उन्होंने अलग अलग घरानों के गायकों से सुना, वादकों से सुना, तो उन्होंने देखा अरे यमन ये भी गा रहा है, वो भी गा रहा है, वो भी बजा रहा है, मगर अपनी अपनी शैली से बजा रहा है। स्टाइल, पर्सनल स्टाइल अलग है, मगर उसके की है। तो इनके मन में विचार आए अगर इसका स्वरूप एक है मतलब ये हमारी परंपरा है। बैकबोन इज वन। तो अगर ये परंपरा हमारी एक है तो उसके क्या नियम है, लेट मी फाइंड आउट। और उसके लिए उन्होंने शास्त्र बनाया और ट्राई टू फाइंड आउट। आई एम गोइंग फॉर द लॉजिकली थिंकिंग ऑफ इट। उन्होंने कहा कि राग तो सभी बजाते गाते हैं और सभी सरखे हैं, अपने अपने शैली से गा रहे हैं, अपने अपने ढंग से गा रहा है, मगर उसके स्वरूप एक ही है। मगर इसका अगर स्वरूप एक है इसका मतलब ये हमारी परंपरा है। ये बात ये परंपरा जो है तो क्या है, उसके क्या नियम है, उसके रूल्स क्या है? Then because he was an advocate, he was trying to go to the roots and find out every cause for it, and logical reasoning. That is what उनका जो थॉट प्रोसेस चल रहा था। तो उन्होंने देखा कि ये राग स्वरूप ऐसे गाए जाते हैं, मगर इन रागों में हमारे उन्होंने ये देखा है कि इन रागों में हमारा हिंदुस्तानी संगीत के राग अंग पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत ही राग अंग पर आधारित है। ये बहुत बड़ी बात है। कर्नाटक पद्धति के राग स्केल राग हैं। उसके उदाहरण में शाब्दिक रूप अभी दे रहा हूं। हमारे यहाँ सारी गप धसा उनके यहाँ केवल मोहनम है, जबकि हमारे यहाँ सारे गप दशा इस भूपाली, इस सारे गप दशा इस भूपाली, इस देशकार, इस जैत कल्याण एंड इस पहाड़ी। वाह वाह भाई, भूपाली, देशकार, जैत कल्याण एंड पहाड़ी और पहाड़ी। तो अगर हमारे स्वरों में सारे गप दशा से 4 राग हैं, इसका मतलब वो राग एक दूसरे से अलग हैं। जी हाँ। तो अलग कैसे हैं? तो उसके राग वाचक स्वर संगति के विशिष्ट लय में उच्चार। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। विशिष्ट लय में उन स्वर संगतियों के उच्चार। तो उन्होंने देखा जब हमारे राग अंग से गाए जाते, राग अंग, क्यों कि जब हमारे गायक, हमारे म्यूजिशियंस, हमारे म्यूजिकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारे रागों की व्यक्तित्व है, मीन पर्सनैलिटी। There is a personality, correct? अगर उन्होंने कहा मानिए हमने पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी क्यों कहते थे वो मैं अभी बता रहा हूँ। क्यों? क्या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते कि अरे ये ठाट पद्धति के राग वगैरह हम मानते नहीं, हम राग रागिनी मानते। सुनिए, मेरी कहने का, अगर आप राग और रागिनी मानते मींस मेल एंड फीमेल, अगर मेल एंड फीमेल हुआ तो पर्सनैलिटी हुई। करेक्ट।
मेल और फीमेल हुआ तो पर्सनैलिटी हुई। तो इसका मतलब आप राग की पर्सनैलिटी मानते हैं। हाँ अगर पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व मानते हैं, जिसको मराठी में व्यक्तिमत्व बोलते हैं हम, हाँ हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं। जी अगर पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, तो व्यक्तित्व किससे निर्माण होता है? तो राग के स्वरूप होगा तो व्यक्तित्व होगा। स्वरूप, फीचर, करेक्ट। अगर फीचर है तो व्यक्तित्व कैसा होगा? तो उसके स्वरूप होगा। स्वरूप कब होगा? जब उसका अंग होगा। हाँ, ये बात कितना लॉजिकल बात और है। वाह। अंग कब होगा? जब उसके जैसे हमारा अंग, हमारे हाथ है, पैर है, कान है, आंखें हैं, अपने अवयव हैं हमारे, जैसे राग के अवयव कहाँ होंगे? तो उसके रागवाचक विशिष्ट लय में स्वर संगति। हाँ भातखंडे जी के विचार से कह रहा हूं। हाँ हाँ, है बिल्कुल। तो राग अंग जो है हमारा, ये सबसे महत्व की बात है। तो उन्होंने जब देखा कि ये 40-45 राग हमारे गाए जाते हैं, राग अंग से गाए जाते हैं, जी। फिर भी कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है कि सेम स्वर होंगे। हाँ अगर स्वर साम्यता है, हाँ स्वर साम्यता में जी। कुछ लोगों को, स्वर साम्यता में कुछ लोगों को तालीम नहीं है, हाँ वहां जैसे उदाहरण के लिए अगर हम सारे मप धसा कहते हैं, हाँ हाँ सारे मप निसा, हाँ, सारंग गाते हैं हम, तो ठीक है। हमारे सारंग के उच्चार और मल्हार के उच्चार अलग है। हाँ, ये तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है भातखंडे जी का। जी जी जी। भातखंडे जी का स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि वो राग राग अंग से गाए जाए। हाँ दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन कि सारे मपनिसा हमारे पास सारंग भी है, मधबात सारंग में सारे मपनिसा नी कोमल है, और हमारे मेघ में भी एक सारे मपनिसा नी कोमल है, हाँ, मगर दो अलग कैसे गाएंगे? तो वो उच्चार है। करेक्ट। बहुत दिस इज द स्टैंडर्डाइजेशन, हम्म। नॉट दैट कि सारंग शुड बी संग। एक ने किसी ने सारे मप गाया, रेपा रेमप गाया तो सब लोग रेमप वैसे ही गाएं। नो, सो दैट इज नॉट आर्ट, हाँ, दैट इज नॉट आर्ट, है ना? इट इज अरिथमेटिक। दैट इज अरिथमेटिक। हाँ, तो अगर ऐसा कोई गाए तो वो इट इज मैकेनिकल, हाँ ग्रामेटिक ओनली, हाँ फीलिंग्स नहीं है भाई। सबसे पहले हम जब कहते हैं व्हाट इज राग, राग इज अ लैंग्वेज विच एक्सप्रेसेस योर इंट्रिंसिक भाव। सेंटिमेंटल फीलिंग्स, हाँ, भाव, इंट्रिंसिक सेंटिमेंटल फीलिंग्स, फीलिंग्स। और क्या बात, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। करेक्ट। एंड इट इज एन आर्किटेक्चर ऑफ टोन्स एंड टाइम। हाँ, टोन्स एंड टाइम। टाइम मतलब इट इज एन बहुत अच्छी बात, आर्किटेक्चर ऑफ टोन्स एंड टाइम। क्या बात, बहुत बड़ी बात है। टोन्स एंड टाइम। तो हमारे राग, उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन का अर्थ उन्होंने ये कभी नहीं कहा, और कहीं भी कहीं उन्होंने, देखिए ये फिर गलतफहमी लोगों की दूर करना चाहता हूं मैं। एक राग के अलग प्रकार हैं हाँ हमारे यहाँ, हाँ हमारे यहाँ एक राग के अलग प्रकार हैं। हाँ, वो जैसे कौशिक कानड़ा 4 अंग से गाए जाते हैं। हाँ 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 एक कौशिक कानड़ा हाँ में मालकौंस में कानड़े का अंग हाँ हाँ नीप और गमरेसा। हाँ हाँ मैं उधर आज शाब्दिक सब बातें कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बातें बाद में। हाँ, चलिए। हाँ तो एक मालकौंस का कौशिक कानड़े में नीप और गमरेसा, ठीक है। हाँ, केवल कानड़े का नीप अंगार। संगति, कानड़े अंग, कानड़े की स्वर संगति कोमल निषाद से पंचम, हाँ गंधार का आंदोलन और गंधार वक्र गमरेसा, हाँ हाँ, ये कानड़े कानड़े का एक हो पहचान है। गया, पहचान हो गई। तो एक कानड़ कौशिक कानड़ा ऐसा। दूसरा कौशिक कानड़ा जिसमें नाइकी ऊपर और पूर्वांग में मालकौंस अच्छा, ऊपर में, तो ओके। नाइकी के उच्चार होंगे, नाइकी कानड़ा के हाँ 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 हाँ, वो विशिष्ट उच्चार से नाइकी कानड़ा के उच्चार, और पूर्वांग में मालकौंस। ओ, तीसरा
तीसरा प्रकार है कि पूर्वांग में दरबारी और मालकौं। पूर्वांग में दरबारी और हाँ। मदन ईसा मालकौं। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत अच्छी बात। और चौथा है कौशिकांडा, जो दैवत शुद्ध है। ओ अच्छा, हाँ, वाह। वो जिसको हम बागेश्वरी अंग का कौशिकांडा कहते हैं। मतलब चार प्रकार भातखंडी जी कह रहे हैं, अगर ये 4 प्रकार हैं और आपके पास 4 प्रकार की बंदिशें हैं, हाँ। तो उन बंदिशें उस अंग की बंदिशें हैं, तो उस अंग हाँ। से उसको सजाइए। हाँ ठीक है, सजाइए आप। बिल्कुल। तो वो अगर एक प्रकार अगर अलग हो गए हैं, तो जैसे हमारे विजुअल आर्ट में चित्र, हाँ। एक कलाकार कहता है कृष्ण की मूर्ति मुझे पांडुरंग के रूप में दिखाई दी, हाँ। कोई बोलता है द्वारका में दिखाई दी, कोई बोलता है मथुरा में दिखाई दी, मुझे कृष्ण ऐसा दिखाई देता है। हाँ। मैं ऐसा उसको मैं ऐसे पेंट करता हूँ। करेक्ट। सो दिस इज आर्ट। हाँ। तो उन्होंने तो ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो सकता है, और उन्होंने इसके बारे में चर्चा भी नहीं की है। और अच्छा। उतना भी नहीं, उन्होंने इतना भी कहा है जब में कि हाँ ये रह जाता है, कुछ गायक इसमें फलाना स्वर एक विवादी स्वर के रूप में किंचित प्रयोग करते हैं। हाँ 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 हाँ। या इसमें कोई लोग कोमल गंधार भी लेते हैं। हाँ। ऐसे कुछ वर्णन करते समय उन्होंने ये कहा है। तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब अगर कोई कहे कि नहीं ये राग ऐसा ही गाया जाता है जैसे आटा चक्की पीसना हो ऐसे, बिल्कुल। तो वो गाना नहीं है। हाँ, आपने जो कहा कुछ कुछ रागों का प्रकार होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने ही मुझे उस दिन कहा था कि गौड़ मल्हार 6 प्रकार के होते 6 हैं। प्रकार से हैं। इतना ही नहीं, गिंडे साहब ने एसआरए में संगीत रिसर्च एसआरए में कहा श्याम कल्याण 6 प्रकार से गाया जाता है। क्या बात। हाँ। अभी आगरा घराने में श्याम कल्याण गंधार वर्जित प्रकार से गाया जाता है और शुद्ध सारंग से अलग है। अच्छा। और वो शुद्ध गंधार वर्जित प्रकार मैंने अपने आगरा घराने की किताब में बंदी दी है, जो खां साहब गाए हैं, फैज खां साहब। गंधार वर्जित है लेकिन श्याम कल्याण है। श्याम कल्याण है। ओ। तो गंधार वर्गीय प्रकार कब होगा नयन भाई, अगेन बिटवीन यू एंड मी, उसमें मधमरे जब हम करेंगे तो सोरठ अंश जब हम गाएंगे तब गंधार नहीं होगा। अरे बाप रे। मधमर। तो वहां सारंग अंग न बता के सोरठ अंग से गाना है, जब गंधार नहीं बताना है। तो ये दिस डिपेंड्स ऑन योर हाउ यू स्टीयर द व्हील। Correct. So this is a different subject now for the viewers. I am trying to say that rag prakar is one thing. What so far Mahalaji was saying is about the rag ang. So far he was talking that a standardization is possible when it comes to rag ang. There are different aspects that go to make the personality of the rag. Yes. And therefore the rag ang, and various prakars, various interpretations of that rag. That is a different subject. Yes, correct. तो और कोई प्रश्न है पिछले बार का? नहीं, मैं कर रहा हूँ पिछले बार के प्रश्न। हमारे ये आए हैं, प्रशांत जी आए, क्या कहना है प्रशांत जी? चालू रखे? नहीं, वही आपको याद दिलाने आ गए होंगे। काहे के लिए? समय काफी हो चुका है, तो बंद करें। 1.5 घंटा हो गया है। नहीं, आपका अनम्यूट करिए। माले जी, महफिल इतनी अच्छी मराठी में बोलता हूँ क्योंकि उसको भाव में प्रकट कर सकता हूँ। महफिल खूब चांगली रंगली है, बहुत अच्छी जमी है, तो काफी प्रेक्षक भी जुड़े हुए हैं अभी तक। हम शायद एक और 10 मिनट तक शायद इसको कंक्लूड कर सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इसको अगर आप कहें तो मैं 8 बजे तक कर सकता हूँ।
7:40 Afi, हुए हैं, well, 7:40 हुए हैं. What we are getting from People. the viewers, they are saying please continue, but Oh, I will leave it to yourselves because please let us know how comfortable you are and how long we can take. I am and Nayan bhai is comfortable. hey, I'm fine now. I think there were 2 or 3 questions from last time, so let Then वही Mahalaji reply to all of them. नहीं उसी के सवाल का पिछले वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहा हूँ. चलिए, पहला वाला चलिए. क्वेश्चन हमने कर दिया अभी. Okay. अभी जो पहले वाला जो भातखंडे जी ने व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में हमने अभी कह दिया है. I don't think anything more is required. No. If there is anything required, let them tell me, then I can explain them. दूसरा क्वेश्चन था उनका. दूसरा क्वेश्चन था कि यमन राग में हमको नीरे गमक सिखाया जाता है और भातखंडे जी के क्रमिक पुस्तक मालिका में सारे गम पदनिसा लिखा है. अच्छा सवाल है. हाँ. अच्छा, अब मैं इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ. उन्होंने लिखा है कि भातखंडे जी के किताब में आरोह में सारे गम पदनिसा लिखा है और हम गाते हैं नीरे गमा. अब मैं क्लैरिफिकेशन ये करना चाहता हूं कि आरोह अवरोह ऑफ ए राग इंडिकेट्स ओनली कि उस राग में आरोही वर्ण से बढ़त में कौन से स्वर लगते हैं या वर्जित हैं, बस इतना ही बताते. ठीक है. इट डजंट से दैट कि ये स्वर संगति है. सो नीरेग जो आप गाते हैं वो रागवाचक स्वर संगति है आरोही वर्ण की, वो आरोही नहीं है. हाँ, देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट. हाँ, आरोही वर्ण नीरेगा ये आरोही वर्ण की स्वर संगति है जो रागवाचक स्वर संगति है. और जब हम राग के विस्तार में नीरेगा गाते हैं तब मदनी गाते हैं. हाँ, उसका काउंटर पार्ट. मगर पुरानी बहुत सी बंदिशें हैं जो सारे गम से शुरू होती है. हाँ, पुराने खानदानी बहुत सी हैं. हाँ, बहुत सी बंदिशें हैं. उसका प्रैक्टिकल अगर चाहिए तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में दे दूंगा. बहुत हैं पुराने चीजों. हाँ, बहुत पुरानी चीजें. हाँ, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ महाले जी, कुछ लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं पासा नहीं होता है ऊपर, ये मैं तो नहीं मानता हूँ. अरे भाई, पुरानी चीजों में पासा बहुत सारी चीजों में है. नयन भाई, कल्याण अंग के लक्षणों में अंतरे का उठाव पंचपोसा है. यही मैं कह रहा हूँ. बिल्कुल है. और पुराने कितने बंदिश है जिसमें पासा चलता. पपसा ये कल्याण अंग के रागों के अंतरे के उठाव हैं और संबंध बंदिशों में दिखाई देंगे आपको. तो कृपया ये गलतफहमी मन से निकालिए कि नीरेग इज आरोह. आरोह, और सुनिए, आरोह तब होता है, नीरेग इज एन ओनली रागवाचक आरोही वर्ण की फ्रेज. इट इज अ फ्रेज. आरोह जब होता है कि मध्य सात से तार सात तक कंटिन्यूअसली जब जाते हैं तब आरोह होता है. और आरोह ये दर्शाता है कि उस राग के आरोही वर्ण की बढ़त में तार सात तक जाने के लिए कौन से स्वर लगते हैं या नहीं लगते. उसमें कुछ स्वर मान लीजिए वक्र है. जैसे हमारे बिलावल में सारे ग म ग रे ग प, तो मध्यम वक्र है आरोह में. ठीक है. हाँ. तो आरोह में ये दिखाई देगा कि ये स्वर ऐसा वक्र जाता है. हाँ. समझ में आई. जैसे कानड़े के प्रकार के अवरोह में बताएंगे गमर ऐसा आना है, मगर ऐसा नहीं आना है. तो वो ये दर्शाता है, बट इट डजंट से द राग परफॉर्मेंस. ये स्वर संगति है. और में जो लिखा है सारे गम पदनिसा, इट ओनली इंडिकेट्स कि ये राग में आरोही वर्ण में सर 7 ही स्वर लगते हैं. इट इज ओनली इंडिकेटिंग दैट. इट इज नॉट इंडिकेटिंग कि नीरे ग गाना चाहिए या सारे ग गाना चाहिए. उन्होंने ये केवल ये स्वर प्रयुक्त होते यही दर्शाता है. आरोह, नथिंग एल्स. हाँ.
समझ में बिल्कुल आई? बिल्कुल। मैं अभी खास करके यंगर म्यूजिशियंस के लिए ये भी क्लियर करना जरूरी है, खास हाँ करके इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में, जी जी कि आप धनी कर रहे हैं, धनी, उसके बाद धासा मत करिए, धनी नी रे धासा, ये मत करिए। मेरे ख्याल से धनी रे नी रे धनी सा, नी होते हुए सा पे जाना जरूरी है, धासा और धनी धसा नी, ये तो शंकरा हो गया है ना, या तो शुद्ध कल्याण हो जाता है धासा तो करने से। उस तो वहां के वहां सबसे महत्व की बात है उच्चार, मतलब एक विशिष्ट लय, लय है उसके अंदर। मैं क्यों बताऊं, इसलिए मैं कहूंगा, इसका उदाहरण दूंगा। हमारी भाषा में LIV इज लाइव एंड लिव, तो दो एक ही शब्द के दो उच्चार है, क्योंकि उच्चार अलग है इसलिए अर्थ अलग है। कल पता चला। बिल्कुल। तो हमको सारे गप जब गाना है तो भोपाली में कब कैसा गाएंगे और देशकार में कैसा गाएंगे, ये मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, हाँ, आज नहीं। और LEAVE किया तो दीर्घ हो जाता है और टाइम फैक्टर आ जाता है। तो सो राग में, अच्छा फिर आरोह में यमन में बताया है सारे गा, मतलब ग के बाद कॉमा दिया है, मतलब वहां उस स्वर पर ये दीर्घ तो है, हाँ, रुकना है वहां। न्यास होता है, मा प कॉमा है, क्योंकि पंचम पे न्यास होता है, गंधार पे न्यास होता है, हाँ, द निसा, फिर दैवत पे थोड़ा न्यास होता है, फिर निसा आ जाता है। तो कॉमा दिखाते हैं कि इन आरोही वर्ण की बढ़त में इन स्वरों पे न्यास होता है। हाँ, इट इज ओनली इंडिकेटिंग दैट, इट इज या नॉट सेइंग के नीरे ग और सारे ग ये राग अंग है करके, इट इज करेक्ट, ओनली स्वर कौन से प्रयुक्त होते ये दिखाते बिल्कुल। हैं। सो प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड कि नीरे ग ही लेना है। मुझे 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 दुख होता है, एक बहुत ही सीनियर म्यूजिशियन के रेडियो के भाषण में कहा है यमन में आरोह में पंचम वर्जित होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम, आई डोंट वांट टू से, मगर उन्होंने ये कहा है, इट इज रिकॉर्डेड इन द यमन, इन द आकाशवाणी मुंबई। और यमन के राग में आरोह में पंचम वर्जित है। ये किसने कहा भाई, किसके किताब में, किसने कौन सी किताब में कहा है? बिल्कुल है? सही बोला आपने, वाह। अरे यमन भाई, नयन भाई, धीरे गामा पधानीसा ऐसी तान नहीं जाती है क्या? और क्या, बिल्कुल धीरे गामा पधानीसा जाती तान, बिल्कुल। गमा पधानीसा जाती तान, हाँ हाँ, फिर और है ना, अगर सातक भी नहीं गए, ग म प ध नि ध प म ग, ये तो है। मगर 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 राजा भैया ग्वालियर के, उनके तानों की किताब लोगों कृपा करके देखे, उसमें सब तान कैसी है, मैं बोलूंगा नहीं, उनकी किताब है राजा भैया की तानों की, कृपया देखे ग्वालियर की ताने कैसी है। नहीं, और सबसे बड़ी बात, ये तो किताब से मालूम करना, दूसरी बात है खानदानी पुरानी परंपरा के बंदिशों से मालूम करना। मैं बंदिशें से कहता हूँ, बाद में वो भी कहूंगा, मैं वही कहता हूँ, सब बंदिशों में है, पुराने बंदिशों में, परंपरा के बंदी। आपको मालूम होगी। वैसे तो आले नबी औलादे अली पर क्या है? हाँ, आले नबी औलादे अली पर बार बार जाऊं, तो हाँ, जोहर के फरजंद, है ना पंचम पर? है बिल्कुल है। पुरानी चीज आपको, पिहरवा तिहारी नेक नजर, है ना, है फिर पर बार देखिए पंचम से, पर बार बार हाँ डरूं बलि सागर गामा पा हाँ पुरानी चीजों में है। हाँ, निसार हुसैन का तराना है, ताना नादिर दे देम हाँ, ताना ना तारे दानी तारे दानी सारे गा, ये क्या है? मगर ये कोई सिखाते नहीं है, कहते गलत है करके, अभी क्या कहें। खैर, मैंने सिर्फ ये बताया, उनके नीरे ग के बारे में जो क्लेरिफिकेशन चाहिए था
वो हमने बता दिया है। चलिए, 2 सवाल और का क्या, हो गया। और तीसरा कुछ प्रश्न सवाल है? क्या है? एक मिनट, मैं तीसरा सवाल क्या है जरा, ये आया है तो मैं बता रहा हूँ। Unmute. While Mahle Kaka is looking for the next question, Nayenda, let me just tell you, and as I am a tablist, because not a vocalist, but Yeah. it is happening in tabla as well. I don't want to name the university. हाँ हाँ, और ये परीक्षा में प्रश्न लगाया जाता है, ये बहुत मतलब आई एम पुटिंग इट ऑन द रिकॉर्ड्स बिकॉज Yeah. यूनिवर्सिटी शुड टेक केयर ऑफ इट. What is? अजराड़ा घराने का कायदा लिखी है, हाँ अगर हाँ, आप धागेना धातिकट धिकिटे धागेना नहीं लिखते तो अजराड़ा नहीं होता है. अरे ऐसा हो रहा है. अजराड़ा लोगों के मतलब धागेना धातिकट बज रहा है तो अजराड़ा है, दूसरा कायदा लिखते हैं तो अजराड़ा नहीं होता है. कृपया ये बहुत लिमिटेड नॉलेज से आदमी ऐसे बात करता है. yes, Nayenda, बहुत, I think नॉट ओनली लिमिटेड, इट इज एक इतना बड़ा विशाल दुनिया के अंदर अजराड़ा घराना इज अ बिग सब्जेक्ट. इसके अंदर एक छोटा दाना पकड़ के उसके ऊपर बोल रहे हैं, ये गलत बात है. एक सबसे अजराड़ा के पहचान बंदिशों में से, जो तबले की बंदिशों में से अजराड़ी के पहचान के लिए बहुत सारी बातें हैं. बहुत सारी. कुछ लोग कहते हैं सिर्फ तीसरे जाति में, क्यों? चतुस्र जाति सीधे बराबर के लय में बहुत सारी अजराड़ी के बंदिश है जी. हाँ, पहचान के लिए और भी 4-5 फैक्टर्स हैं, तब हम कहते हैं हाँ ये अजराड़ा है और ये दिल्ली से अलग है. और बात है. हाँ, दिल्ली से अलग करना, अजराड़े को पहचानना, ये सबका काम नहीं है. गिने चुने हैं आज हिंदुस्तान में जो आपको बोल सकते कि ये दिल्ली है और ये अजराड़ा है. Yes. हाँ, और ये जो आपने कहा धागे न धात्र के देते धागे न, तो ये तो दिस इज वन कॉम्पोजिशन, दिस इज नॉट ए पहचान, दिस इज नॉट अ फीचर. वो क्या कहते हैं, वो क्या नहीं है बोलते हैं उसमें? हाँ जी, ये क्या नहीं बोले उसमें, लोग क्या कहते हैं? If one of the exams, if a student has written a different qaida of Ajrada Gharana, it was considered not of Ajrada Gharana because the curriculum doesn't. They are not aware that Ajrada is very vast. No. They definitely need urgent re-education. I think I've taken this topic because it is quite relevant to what Mahle Kaka has just said, because the juncture at which the music is today, it is unnecessarily being structured and just put forth to people who are trying to learn and come towards music. No, and some people are bent on over defining things. Over defining, yes. Thanks a lot, Mahle Kaka. Please continue. Sorry. No. ये इससे रागों के बारे में बहुत ही कंजर्वेटिव आउटलुक निर्माण होता है जी. Yes. भाई 50. हाँ बोलिए. ये इस प्रकार के रागों के बारे में बहुत कंजर्वेटिव आउटलुक डेवलप होता है. हाँ, करेक्ट. नहीं, पूरा नैरो हो जाता है. वो अच्छा. अभी देखिए तीसरा क्वेश्चन है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्रशांत, वी कैन गो अहेड, नो? Yes, Kaka, we 5 minutes, maybe 5 or 10 minutes we can wrap up because okay. तो ठीक है, अगर ये खत्म नहीं हुआ तो मैं I will continue it next time. No. Yes, attention span is also something. Yes. अच्छा, you have to take into account. Bhai, the most important question is, please, was there any association of Bhatkhande ji with Kirana Gharana? What bandish did he receive from Kirana Gharana? I know what the answer is, but I'm very keen to know from you. This question, I will be able to answer it in a very broad matter. 1, 2, 3 इसके aspects हैं. मगर मैं पहला बात तो यही कहूंगा कि first of all, Bhatkhande ji had not tried to collect the bandishes for to identify the gharana. Absolutely. Number one, he had collected the bandishes to identify the raga swarupa. Am I right? Very excellent clarification. First thing I am clarifying it. He had collected the bandishes
because he wanted to build the शास्त्र and the राग theory. इसलिए जितने भी रागों के बंदिशों से उनको अभ्यास करके रागों के स्वरूप में क्या क्या होता है, क्या कैसे किया जाता है, ये देखने के लिए उन्होंने रागों के बंदिशें का संग्रह किया. बिल्कुल. नंबर 1. नंबर 2, दैट टाइम एंड एनी घराना, किराना घराने का नाम लिया इसलिए मैं कहता हूं आई एम फॉन्ड ऑफ ऑल द घरानास, नंबर 1. मगर किराना घराने का नाम लिया, मैं इतना ही कहूंगा उस जमाने में किसी भी घराना का एस्टैब्लिश स्वरूप आफ्टर 3 जनरेशन होता है. करेक्ट. एम आई राइट सब? करेक्ट. किसी भी घराने का फुल फ्लेजेड एस्टैब्लिशमेंट स्वरूप इट इज ओनली आफ्टर दी 3 जनरेशन. तो भातखंडे जी के वक्त वो घराने के, ये जो हमारे घराने हुए हैं, उनके क्या क्या स्वरूप उस वक्त थे. It did Number not 1. take shape at that time. हाँ, Gharana did not take shape at that time. at the number 1. Number 2, please remember that in those days also, and practically in those days, practically उस जमाने में सभी घराने के गायक अधिकतर सदारंग, अदारंग और मनरंग की बंदिशें ही गाते थे. बिल्कुल. बिल्कुल. तो कोई भी घराने का गायक उस सदारंग, अदारंग और मनरंग की बंदिशों को अपने अपने उनको मिली हुई तालीम के आधार पर उसका डेवलपमेंट करते थे. बिल्कुल. बिल्कुल. Am I right? हाँ. अगर बंदिशें उनको मिली है सदारंग, अदारंग और मनरंग की, तो उन बंदिशों को उनको जिस घराने की जिस परंपरा की तालीम थी, उस तालीम के अनुसार उस बंदिश को सजाते थे. हाँ, व्यूअर्स के लिए एक सिंपल एग्जांपल बोल रहा हूँ. एरी आली पिया बिना अगर है यमन की बंदिश, आगरे वाले आगरे हिसाब से गाएंगे, आगरे का गायकी. अब किराने वाले किराने, ग्वालियर वाले ग्वालियर, है ना. These are stylistics. The घरानास are actually stylistics. नहीं, अब मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ. मतलब घराना परंपरा, you see, जिसको हम ये कहते हैं, tradition is a school of thoughts. Tradition is a school of is thoughts. a school of thoughts which presents and or displays stylistic diversity in musical expression, which is subjective. वाह वाह. फिर से अगर can you repeat this very nice sentence? See, tradition means gharana. Tradition is a school of thoughts which presents and or displays stylistic diversity in musical expression, which is subjective. बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात. Which is subjective. Wonderful तो sentence. इसका मतलब, हाँ. This sentence itself is very educative. और फिर ध्यान में रखिए, style is a multi-layered phenomenon. There are deep and shallow aspects of style. One may capture all the aspects and yet miss the bullseye as far as the essence of emotion is concerned. क्या बात है. ये दोनों सेंटेंस आपके बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन है. अभी तो वो घराने की, तो ये विषय प्रशांत जी, अभी इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए टाइम चाहिए जो आज भी नहीं है, तो हम इसको यहीं खत्म करेंगे और इसको कंटिन्यू करूंगा मैं. श्योर. धन्यवाद महाले काका और नयन जी. इट वाज डेफिनेटली वेरी इंसाइटफुल सेशन and understanding the humongous task which sorry, I need to interrupt because the question was, and I think also the person who posed the question needed to know or wanted to know whether Bhatkhande ji interacted with Kirana maestros also. Mahale ji, can you say something on this? it will take some time. But he did. Yes, I will definitely say. But I am not, you see, देखिए, मैं not as a Kirana only. He is giving an example.
He's not giving, he's only giving an example कि भाई किराने की बंदिश उन्होंने गाया, मगर ये सवाल ऐसा है, उनको कृपया कहना है बंदिश घराने की नहीं होती है, बंदिश ये किसी रचनाकार की प्रॉपर्टी है, उसको आप घराने के गायकी से सजाते हैं। हाँ बस हो गया, दैट इज द आंसर। बंदिश अगर मुझे मैंने अभी आई विल टेक 2 minutes more प्रशांत। Yeah, Suppose according to that gharana, there is a rachanakar who has composed. Let us take it kirana. उसने मानो कि उसने बंदिश बनाई है, उसके पहले उसको 2 घराने की तालीम थी, वो बंदिश कौन से घराने की बनाएगा? करेक्ट, बंदिश तो घराने का नहीं होता। हाँ एग्जैक्टली। सी उसको तालीम अगर 2 घराने की है, जयपुर की भी है, ग्वालियर की भी है, और बाद में किराने के बंदिश में आया और उसने बंदिशें बनाएंगा, व्हाट बंदिशेस ही विल प्रिपेयर? देखिए बंदिश जो है, बंदिशकार जो बंदिश बनाता है, वो बंदिश के 3 अंग होते हैं। लिसन टू मी। हाँ जी। एक रागांग, दूसरा काव्यांग, ठीक है, और तीसरा लयांग। वाह, हो गया। लयांग, द रोल ऑफ लयांग इन अ बंदिश इज कि काव्यांग के भावों को समझकर रागांग में नादमय करना। रचनाकार जब बंदिश करता है तो वो देखता है कि उन शब्दों को मुझे नादमय करना है, वो शैली नहीं देखेगा और राग के अंग को देखेगा। बिल्कुल, we will continue this in the next episode. उसके बारे में मैं और भी कहूंगा, और फिर भातखंडे जी ने वो जो उनके पास कहा म्यूजिकोलॉजिस्ट कि why he has not identified the घराना, उसका भी जवाब दूंगा मैं। ये तो मैंने ये तो लॉजिकल थिंकिंग बताया, but his reasoning behind that is different, which I am going to tell. Okay. तो next सेशन में, और मैं धन्यवाद लेता हूँ। Thank you, Mahalay Kaka. Thank you so much. It is definitely, very valuable and wonderful insights into these minute aspects of music. For the benefit of all the viewers here, one thing which I have noticed, I want to express, as Mahalay Kaka was saying, the link between Bhatkhande ji and late Ratankar ji, and what was the link? ये सौभाग्य है और ये एक सुयोग है कि महालय काका और भातखंडे जी का भी ऐसा ही लिंक है। अगर हम गौर से देखते हैं हिस्ट्री के हिसाब से, तो भातखंडे जी का निधन 19 सितंबर 1936 में हुआ था, और बिल्कुल 1 वर्ष पहले 16 जून 1935 को महालय काका का जन्म हुआ था। बराबर है महालय काका? So there is something. See, the reason why we are so fortunate to get this immense treasure of knowledge coming through 4 generations, and Mahalay Kaka being the the person who has inherited this, definitely there is a divine reason behind it. I just noticed this while I was going through and reading through the history. Thank you so much. Thank you, Nayanji. We are definitely benefited with both of you, coming on to. क्षमा कीजिए, हमने थोड़ा सा वक्त ज्यादा लिया है श्रोताओं का। Yes, thank you. And we will, yeah, काका। मगर ये इस सवाल जो अभी जो लास्ट सवाल था किराने घराने का, वो जो घराने के हिसाब से, बंदिशों के हिसाब से, भातखंडे जी के विचार से मैं इसको फिर एक्सपांड करूंगा नेक्स्ट टाइम। Thank you. So we will definitely tell you. Yeah, we'll definitely meet again. We will announce the date as it is fixed, and we will again meet you on this same platform, and we will look forward for much more, insightful discussions. Yes. Thank you so much for being with us. Thank you. Thank you. And I would welcome. Yeah. I would welcome some more questions from the learned people. Yes, we have been intimating and informing all the people who have joined us. Please do get back to us with your questions. That will make the discussion much more meaningful. Thank you so much. Thanks for joining us, and have a wonderful week ahead. Thank you. Naim ji, namaskar. Namaskar. We will definitely discuss. Thank you so much. Thank you.